क्या एक्सप्लोर नहीं दिया टेक्स्ट में, बोले थे देखिए. Okay, so we were studying our local self government, and that we had studied the different aspects of the 73rd constitutional amendment. In that we studied that in 73rd amendment, which was meant for Panchayati Raj, so the different features of Panchayati Raj institutions we had studied, like first of all it was a three-tier structure. Mostly, yes, mostly it is three-tier structure everywhere. That means one at the village level, one at intermediate, that is block or taluka level, and then at district level. Then elections were made compulsory to be held within 6 months of dissolution of a panchayat or the period ending after 5 years. Then reservations were also incorporated into it, that reservations for different categories and also for women has been made in that Panchayati Raj institutions. 1/3 is for women horizontally. Then transfer of subjects, that means the powers which were earlier lying with the state government upon many subjects which are related to the actual ground level. So these subjects were transferred to the panchayats under Article 243G, and we had mentioned some subjects like agriculture, irrigation, small scale industries, rural housing, drinking water, roads, rural electricity, poverty alleviation, culverts, yes, हाँ, नाला गड्ढा उस तरफ. And then cultural act, market and fair, health, sanitation, women, child development, family welfare, means actually which are related to the grassroots level, to family level, to village level. So these subjects were transferred. That means you have to see how many, I think 29 subjects are there in all. And then State Election Commission was appointed to conduct elections to these local government bodies like panchayats, Panchayati Raj, and in the towns. Then State Finance Commission is also there. There is a provision for State Finance Commission which decides what share of revenue should be given to these institutions by the state government, and what should be the share between the rural and the local and the urban local bodies. So all these features we had studied, and now we will be studying the 74th amendment. Okay, 74th amendment. 73rd amendment, it was relating to the rural areas, and it was about the Panchayati Raj institutions. The 74th amendment, it is regarding the urban areas or municipalities. So as we mentioned earlier, the 74th amendment dealt with urban local bodies or nagar palikas. Nagar palika, नगर का जो पालन करने वाली संस्था है, तो दैट मीन्स नगर पालिका. In English we call it municipalities. So the 74 74th amendment dealt with urban local bodies or nagar palikas. Now what is an urban area? First of all the question, हाँ, तो शहरी क्षेत्र का मतलब क्या है, कैसे डिफाइन, व्हाट इज एन अर्बन एरिया? It is very easy to identify a big city like Mumbai or Kolkata, but it is not so easy to say this about some very small urban areas that are somewhere between a village and a town.
तो बड़े शहरों को तो आप बहुत आसानी से कह दे सकते हैं कि हाँ ये शहर है कि क्या है, लेकिन जो बहुत ही छोटे उनके बारे में कहना, जैसे उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप ही के एरिया के बारे में, तो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ ये अर्बन एरिया में आता है या रूरल एरिया में आता है. So somewhere between a village and a town, there are many areas that are not village but not a town also. So it is not easy to say. So what is the classification? The census of India defines an urban area as having, देखिए तो हमारे जो इंडिया का जो संस्था है सेंसस ऑफ इंडिया, वो उसका क्या डेफिनेशन है तय करने का, कैटेगरी करने का. देखिए फर्स्ट, अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, कम से कम पहले पॉपुलेशन बेसिस पर है कि 5000 कम से कम मिनिमम पॉपुलेशन होना चाहिए उस सेटलमेंट का, उस बसाहट का. सेकेंड, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन. दूसरा है कि 3/4, 75% और 3/4 ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन, मेल वर्किंग पॉपुलेशन, नॉट ऑल मेल्स, जो भी लोग मेल काम कर रहे हैं उनका 3/4 जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होना चाहिए, एग्रीकल्चर में नहीं होना चाहिए. नॉन एग्रीकल्चरल, खेती को छोड़ के, हाँ माने खेती को छोड़ के दूसरे कार्यों में लगे होने चाहिए. जो टोटल वहां पुरुष काम करने वाले हैं उनका 3/4 कम से कम, यानी अगर 100 लोग अगर हैं तो 75 लोग उसमें खेती बाड़ी छोड़ के दूसरे कामों में लगे होने चाहिए. हाँ हाँ, तो उस एरिया को अर्बन एरिया कहा जाएगा. ठीक है, अगर 75 से कम है, ठीक है, यानी मिनिमम 25% मैक्सिमम हो सकता है, 25% से ज़्यादा खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं तो वो रूरल एरिया कहा जाएगा. हाँ, रूरल एरिया हो जाएगा. समझ गए? जो है कि मिनिमम 75% होना चाहिए. 70-30 का भी रहेगा तब पर भी नहीं. हाँ नहीं, तो मिनिमम एक बाउंड्री सेट कर दिया गया है कि 3/4 या 75%. 5000 का नहीं, देखिए 5000 तो टोटल पॉपुलेशन बोला है, उसमें जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है, मान लीजिए 5000 में सिर्फ 1000 लोग ही हैं जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन. बहुत सारे मेल हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों. हाँ 2500 मेल. हाँ भाई, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी तो होंगे हैं, 15 साल से कम उम्र के होंगे, बच्चे होंगे उस एज ग्रुप में, फिर ऊपर जो है उधर ज़्यादा उम्र के होंगे, तो वो लोग थोड़े काम करेंगे. तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें उसका 3/4, यानी मान लीजिए कि 1000 लोग हैं तो उसका 3/4 यानी 750 लोग कम से कम खेती बाड़ी को छोड़ के दूसरे कामों में लगे. 21 से 60 साल के बीच का. हाँ 21 से 60 साल का बीच ही एकदम 21 नहीं 15 लिया जाता है, वर्किंग पॉपुलेशन का एज 15 साल से लिया जाता है. हाँ हाँ, नहीं ग्रेजुएट हर जगह लोग नहीं ना होते हैं, हर कोई ग्रेजुएट के लिए थोड़े पढ़ता है. तो 15 साल, ठीक है, 15 साल तक जनरली डिपेंडेंट पॉपुलेशन माना जाता है कि वो गार्जियन पे डिपेंडेंट होते हैं. 15 के बाद जो है वो वर्किंग में आते हैं. 16 से 60 साल नहीं 15 से ही 14 ईयर्स तक जो है, तो 14 के ऊपर हो गया, 15 से 60. 15 to 60 का जो एज ग्रुप है उसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, मतलब कामकाज करने वाले जो लोग हैं वो कम से कम 3/4 उसके जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में होने चाहिए. नहीं. हाँ, एंड थर्ड, अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ भी है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. ये भी है थर्ड क्राइटेरिया कि जो उस जगह का घनत्व है अर्बन एरिया कहने के लिए वो 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर कम से कम होना चाहिए. अगर इससे कम डेंसिटी है तो भी उसको हम अर्बन एरिया नहीं कह पाएंगे. 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का एरिया, एरिया है
तो एक हाँ मान लीजिए कि हमारा गाँव 3 किलोमीटर है भी, तो उसमें मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर में 400 पर्सन होने चाहिए। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। आप कैसे बोल रहे हो, देखिए वो लंबाई चौड़ाई मिला के देखा जाएगा ना, तो एरिया वाइज यहाँ है कि जो एरिया निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन से टोटल डेंसिटी आपका डिवाइड, टोटल एरिया को डिवाइड किया जाएगा, वो आ जाएगा पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो मेल ना 400 पर्सन यहाँ पे नहीं नहीं मेल नहीं, ये पॉपुलेशन की बात है, इसमें मेल का क्या है, रहेंगे सब लोग ना। तो जनसंख्या के घनत्व की बात होती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि कितना बसाहट वहाँ कितना घना बसा हुआ है। सब मिला के 400 हाँ हाँ, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उस जगह की जो है वो कम से कम 400 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तीनों में के तीनों होना चाहिए। तीनों होना चाहिए। तीनों में से केवल दो रहा तो हाँ, दो रहा तब नहीं होगा, नहीं होगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है तो नहीं होगा, बाकी दोनों है, या ये दोनों है पॉपुलेशन कम है तो वो भी नहीं होगा। मतलब तीनों का तीनों रहना चाहिए, एक भी नहीं हुआ तो नहीं होगा। So these are the 3 conditions to be called an urban area। ठीक है, कई बार आपको था डाउट कि अर्बन एरिया, तो ये क्लासिफिकेशन है सेंसस ऑफ इंडिया का हमारे यहाँ। ए मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस। हालांकि इसको अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये उस सोच पर बना हुआ है कि माना जाता था कि सिर्फ मेल वर्क करते हैं, लेकिन अब तो फीमेल भी वर्क कर रही हैं, तो ये आपको इसमें बदलाव करना पड़ेगा डेफिनेशन में। और थर्ड है 75% ओवरऑल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेल में अब तो फीमेल भी काउंट करें, वो भी तो वर्किंग गिनाएंगी ना, तो फीमेल भी जब आप गिनी जाएंगी तो मेल का तो इतना परसेंट नहीं जो होगा। तो यहाँ एक्चुअली मेल की जगह टोटल वर्किंग पॉपुलेशन करना होगा। एग्रीकल्चर को छोड़ छोटा भी कोई काम कर रहा है हाँ वर्किंग में आएगा। हाँ, जैसे म्युनिसिपैलिटी में देखें रोड पे सब हाँ कुछ भी करे, हाँ कोई बात नहीं, कुछ भी करे, एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, और वो मतलब फायदेमंद काम होना चाहिए जिससे उसको पैसा मिलता हो, पैसा कमा। हाँ, so these are the 3 criteria for an urban area in our India. Now as per the 2011 census, about 31% of India's population lives in urban areas। तो देखिए 2011 मैंने आपको कहा था डेटा कि 30% के आसपास है अर्बनाइजेशन इंडिया का, तो 31% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन। पूरे इंडिया का इसमें एवरेज निकाला गया है। कौन? हाँ, तो नगर पंचायत है ना, तो अर्बन में है ना, नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत है, मतलब कि ये तीनों है। हाँ, नाउ उसका हालांकि एक बार हमको क्लियर होना पड़ेगा नगर पंचायत का क्या होता है स्टेटस, क्योंकि वो आता तो अर्बन एरिया में है लेकिन होता है रूरल एरिया की तरह, इसलिए उसको नगर पंचायत कहते हैं। हम देख लेंगे उसका, ठीक है। तो हमको भी थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, इन मेनी वेज द 74th, नहीं इसलिए कि जैसे देखिए दिल्ली में भी थे हम लोग, तो दिल्ली में भी गांव हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली में गांव नहीं है। जैसे हम ही लोग उस समय एक समय रहते थे, तो एक एरिया था जो बिल्कुल आईआईटी से सटा हुआ, वहाँ पर ही हम लोग रहते थे। एक्चुअली वहीं पर पहले हब था तैयारी का, माने हम लोग से भी पहले जो इसका गेट वगैरह का तैयारी का हब था जिया सराय, तो जिया सराय जो बोलते थे वो बिल्कुल आईआईटी से सटा हुआ है। नहीं एम्स नहीं, आईआईटी से सटा हुआ है बिल्कुल, मतलब आईआईटी हम लोग के जैसे ऐसे था कि मेरा बिल्डिंग ये है और आईआईटी ये है, आईआईटी का बिल्डिंग, समझ गए, बाउंड्रीज कॉमन सटा हुआ था। हम लोग ऐसे पार कर घुस चले जाते थे आईआईटी में, दीवार पार किए अपना तो उधर आईआईटी के अंदर घुस गए। तो दैट वाज अ विलेज, उसको जिया सराय गाँव बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई दम हार्ट है दिल्ली का और उसको गाँव बोल रहा है, दम हार्ट है वो, साउथ वो हौज खास एरिया जो है,
हौज खास जो है, तो दिल्ली IIT दिल्ली है, साउथ दिल्ली में पड़ता है। हाँ साउथ दिल्ली में आता है। तो वो बिल्कुल समझिए बगल में IIT है, बाहर फर्स्ट क्लास सब बाजार मार्केट सब कुछ है, वहीं पर जो है बिल्कुल हौज खास तो जान ही रहे हैं। और उसके बाद उसको जिया सराय गाँव कहा जाता था। मेट्रो का जाता है। हाँ हाँ, सामने से ही बिल्कुल है। और उसमें जो है आपका वहाँ पर है शेख सराय है, जिया सराय है, बेर सराय है, ये जो एरियाज़ हैं, बेर सराय में आपके फिटजी वगैरह सारा था वहाँ पर। और शेख सराय में जो है ये सब के इंस्टीट्यूट्स थे, जिया सराय और शेख सराय में गेट के IIT से रिलेटेड जो भी MTech और गेट ये सब से जो भी होता है, तो वो सब के इंस्टीट्यूट, तो दैट वाज कॉल्ड अ विलेज। सो आई वाज वेरी सरप्राइज टू फाइंड दैट विलेज, दिल्ली जैसे कैपिटल में उसके हार्ट में जो है विलेज। और बताइए दिन रात वहाँ से मर्सिडीज आ रहा है जा रहा है, ऐसा इलाका है, उसको विलेज। तो कहने का मतलब शहरी में भी कुछ एरिया होते हैं जो विच आर लेसर डेवलप्ड, तो दे आर कॉल्ड एज विलेज। तो ये है कि नगर पंचायत भी होते हैं, उसका देखना पड़ेगा। In many ways, the 74th Amendment is a repetition of the 73rd Amendment. समझिए 74th Amendment भी जो है वो वैसे ही है जैसे 73rd Amendment है, सिर्फ फर्क क्या है, वो शहरों के लिए है और ये गांव के लिए था। तो इन मेनी वेज जैसे जो भी चीज़ें हमने फीचर्स पढ़ी वो सारे फीचर्स यहाँ भी वैसे ही है, ठीक है, खाली फर्क है कि ये शहर के लिए लागू है, वो गांव के लिए थे। एक्सेप्ट दैट इट अप्लाइज टू अर्बन एरियाज, मतलब जो 73rd अमेंडमेंट के हमने फीचर्स पढ़े वही सब चीजें 74th अमेंडमेंट में भी है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये जो है अर्बन एरियाज के लिए एप्लीकेबल है और वो जो है रूरल एरियाज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑल द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट रिलेटिंग टू डायरेक्ट इलेक्शंस, रिजर्वेशंस, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, State Election Commission and State Finance Commission are incorporated in the 74th Amendment also and thus apply to नगर पालिका। तो बिल्कुल सेम टू सेम फीचर्स है। जो अभी आपको मैंने पीछे फीचर्स दिखाए थे, देखिए जो हमने फीचर्स यहाँ देखे थे कि जो है 3 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ भी 3 टायर स्ट्रक्चर है अर्बन में भी, ठीक है। तो उसमें होता है नगर परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है ना, 3 होता है। 3 यहाँ भी 3 लेवल स्ट्रक्चर है, 3 टायर स्ट्रक्चर है, ठीक है। नगर पालिका जो म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, ये पहले हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया म्यूनिसिपैलिटी, सबसे पहले हो गया म्यूनिसिपैलिटी, देन म्यूनिसिपल काउंसिल, एंड देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। हिंदी में क्या कहेंगे म्यूनिसिपैलिटी को? नगर पालिका, का नगर परिषद, और नगर निगम। ठीक है। तो मेट्रोज जो होते हैं, बड़े मेट्रोज या बड़े जिले, बड़े शहर जो होते हैं, जो सबसे बड़े शहर राज्य के होते हैं, वहाँ नगर निगम होता है। जैसे पटना नगर निगम है। डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पे है वहाँ पे होगा नगर निगम। नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जरूरी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट से मतलब नहीं है, बड़े शहर से मतलब है। छोटे शहर, मीडियम शहर और बड़े शहर। पटना में तो क्या है? पटना है, तो पटना में आपका जैसे है कि दोनों चीजें हैं। पटना में है कि नगर निगम है, बेसिकली कहिए तो नगर निगम है, लेकिन जो पटना के जैसे फुलवारी शरीफ है, तो पहले फुलवारी शरीफ अलग आता, तो फुलवारी शरीफ जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल है अपना, समझ गए। फुलवारी शरीफ नगर परिषद अलग है, वो पटना नगर निगम का एरिया जो है यहाँ से कट जाता है बेउर के आगे से, समझ गए ना, अनिसाबाद मोड़ देख रहे हैं ना, वहां तक आता है आपका नगर निगम में जो आता है, उधर फिर चला जाता है फुलवारी शरीफ नगर परिषद, उसके कंट्रोल में आ जाता है। हाँ सब तरह जाता है
फिर दानापुर का अलग एरिया है, दानापुर फिर कैंटोनमेंट एरिया है, उसका वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में आता है। बता रहे हैं वो स्पेशल एरिया है। तो ये जो है आपका 3 लेवल हुआ, जैसे छोटा शहर है, बहुत छोटा शहर है, तो वहाँ नगर पालिका होती है। अब आपका सर हम गए नहीं, देखे नहीं, तो वहाँ पर क्या है आपका देख सकते हैं वो यहाँ नेट पर, लेकिन अभी तो नेट आ नहीं रहा। तो ये जो है आपका जैसे कि छोटे शहर है, ठीक है, सीधा समझिए, छोटे शहर जहाँ रहते हैं तो वहाँ म्यूनिसिपैलिटी होता है, ठीक है। जहाँ मीडियम शहर हैं वहाँ म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, और बड़े शहर जो हैं जैसे पटना ये सब हो गए तो यहाँ नगर निगम होते हैं, ठीक है। हाँ सीधा ये, हाँ बाकी 2 और होता है, एक नोटिफाइड एरिया कमेटी होता है और एक कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, ठीक है। ये 2 होता है, नोटिफाइड एरिया एक होता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी, और कैंटोनमेंट बोर्ड होता है दूसरा, NTONMENT कैंटोनमेंट बोर्ड। अब देखिए ये क्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड जहां आर्मी की छावनी होती है, ठीक है, बोर्ड, तो उसको वहां जो है उसके लिए एक अलग से बॉडी होता है, उसको कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। वो वहाँ का म्यूनिसिपल सर्विसेज वो कंट्रोल करती है, ठीक है, वहाँ का सफाई होना है, जो भी चीज़ें सब कुछ, ठीक है। हाँ, और नोटिफाइड एरिया कमेटी होता है कि जब कोई एरिया गांव में जो पहले रूरल में था अब वो अर्बन में आ रहा है, चेंज हो चुका है, गांव से डेवलप होके वो अर्बन में चेंज हो चुका है, तो उस समय पहले उसको नोटिफाइड एरिया कमेटी में ही रखा जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब नया नया अभी चेंज हुआ है गांव से शहर में, क्योंकि वो डेफिनेशन मान लीजिए उसका पॉपुलेशन पहले 5000 से कम था, अब उसका 5000 से ज़्यादा चला गया है, लेकिन अभी भी डेवलप ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसको जो है पहले नोटिफाइड एरिया कमेटी में वहाँ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद हाँ, फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाता है तो फिर उसको रखा जाएगा म्यूनिसिपैलिटी में। तो इसका कंट्रोल फॉर नोटिफाइड एरिया कमेटी सब काम करता है। हाँ हाँ, वहाँ का जो कंट्रोल बॉडी उसको कहाँ पे जाएगा फिर नोटिफाइड एरिया का? वो भी वही मैनेज करेगा, जैसे कचरा वगैरह सब करना होगा। उसका अलग ही अथी है। हाँ, वो भी वही काम करेगा जो, हाँ, जो ये सब कर रहा है। तो ये इस तरह से जो है अर्बन में भी मैंने आपको बताया कि 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल। विलेज में मतलब नहीं, ये अर्बन एरिया आप कह रहे हैं। उसके बाद इलेक्शंस जो है वैसे ही यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे गांव में पंचायत के होते हैं, यहाँ वार्ड के होते हैं इलेक्शन, या नगर परिषद जिला परिषद के होते हैं। देन रिजर्वेशंस, हाँ, तो जैसे नगर परिषद यही हुआ, नगर पालिका परिषद जो हुआ, नगर परिषद शॉर्ट में बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल जो हुआ, म्यूनिसिपल काउंसिल का जो वार्ड वाला जो चुनाव होता है, हाँ, म्यूनिसिपल काउंसिल का होता है, वार्ड पार्षद कहते हैं हिंदी में, हाँ, काउंसिल का ही होता है, लेकिन काउंसिल में जो है एक होता है वार्ड मेंबर, उसका भी चुनाव होता है, और काउंसिलर जो कहते हैं पार्षद जो आप बोले, उसका भी चुनाव होता है। इसे लेवल है ना, जैसे रूरल में आपने क्या देखा पंचायती राज में कि मुखिया का भी चुनाव हुआ पंचायत लेवल पर, फिर वहाँ पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल वहाँ पर भी तो चुनाव होता है, जिला लेवल पर भी तो होता है। हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन सिर्फ जो है आपका पंचायत, तीनों जगह पर डायरेक्ट ही इलेक्शन होता है। हाँ, इसमें तीनों जगह डायरेक्ट इलेक्शन होता है। नहीं, अलग एक साथ किए जाते हैं इलेक्शन, लेकिन तीनों के लिए होता है इलेक्शन। जैसे यहाँ पे हो गया ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग, यूनियन गवर्नमेंट के लिए अलग, हाँ, इलेक्शन होता है। नहीं, तो वो इसलिए कि वहाँ सरकार अलग है, इसलिए अलग चुनाव। ये तो एक ही सरकार है ना, एक ही दिन में हो जाता है। हाँ, एक ही साथ होता है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए होता है। जो गांव स्तर पर चुनाव लड़ रहा है वो मुखिया के लिए लड़ेगा, जो ब्लॉक लेवल पर चल रहा है वो पंचायत समिति के मेंबर के लिए लड़ेगा, और फिर जो जिला परिषद के लिए पार्षद जो कहे जाते हैं, हाँ, एक साथ सब जगह होता है। तो हमारे एरिया में इसका होता है पार्षद का चुनाव। हाँ, पार्षद का हो तो काउंसिल है, उसके ऊपर
होगा ना चुनाव, हाँ हाँ इस लेवल पे भी होगा, हाँ कॉर्पोरेशन लेवल पे भी होगा। हाँ। तो इस तरह से यहाँ भी आपके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपके रिजर्वेशंस हैं, जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अर्बन एरिया में भी रिजर्वेशन होता है। यहाँ पे भी और SC ST कैंडिडेट का रिजर्व सब ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे वहाँ 29, हाँ लिखा है ना, हाँ 29 सब्जेक्ट्स यहाँ लिख ही दिया था 29 सब्जेक्ट्स। तो 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके अर्बन एरियाज में भी वैसे वो सब मिले हुए, लेकिन हाँ ये जो सब्जेक्ट्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि अर्बन एरिया में भाई एग्रीकल्चर क्या करेगा। तो वहाँ भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसी तरह उसको ट्रांसफर किए गए हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो है आपको एग्रीकल्चर यहाँ पे है, स्टेट लिस्ट में नहीं ना है? नहीं, एग्रीकल्चर केवल आपके यहीं पे जिला स्तर, हाँ गांव स्तर पे एग्रीकल्चर का। तो ये जो है आपका 11th शेड्यूल जो जोड़ा गया, मैंने बताया आपको कि पहले क्या है, पहले 9 शेड्यूल्स के साथ ही, बल्कि 8 शेड्यूल के साथ बना था संविधान। संविधान जब बना था तो उसमें 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल। 8वां शेड्यूल जो था वो क्या था, भाषा से जुड़ा हुआ, कि इस देश में कौन कौन सी भाषाएं चलेंगी या चल रही, उसको एक्सेप्टेंस, तो गवर्नमेंट की ओर से उसको रिकॉग्निशन था। शेड्यूल देखिए आपको, फर्स्ट शेड्यूल हो गया क्या है, टेरिटरी ऑफ नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। सेकेंड इसमें क्या हो गया, सबका जो है आपका सेकेंड शेड्यूल में आपका सैलरी और सारा प्रेसिडेंट ये सब से हो गया। थर्ड में आपका ओथ एंड एफर्मेशन हो गया सबका, जो शपथ लेंगे, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल क्या हो गया, राज्यसभा में डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ शेड्यूल क्या हो गया, फिफ्थ शेड्यूल जो है आपका ये है इससे जुड़ा हुआ जो है आपका ट्राइबल, नहीं सॉरी, फिफ्थ शेड्यूल जो है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया से जुड़ा, हाँ एक ट्राइबल एरियाज है और एक हिल काउंसिल्स का है, ठीक है ना। जो हिल में एरियाज में या स्पेशल एरियाज होते हैं तो सिक्स्थ शेड्यूल हो गया, वहाँ ट्राइबल्स के लिए सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल हो गया जहाँ गवर्नमेंट का ये चलता है। उसके बाद आपका सेवेंथ शेड्यूल हो गया जो आपका पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है। एट शेड्यूल हो गया आपका जो उसमें लैंग्वेजेस, जो आपका इंडिया में जो जो लैंग्वेजेस हैं, फिलहाल आपके 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं, पहले और कम थी। उसके बाद फिर 9th शेड्यूल जोड़ा गया सरकार के द्वारा, पहला शेड्यूल जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऐसे लॉज डाले गए जिसका कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है कोर्ट, तो उस समय बनाया गया था, जोड़ा गया था 9th शेड्यूल, जिसमें सारे जो है लैंड रिफॉर्म्स के लॉज डाल दिए गए थे, वो था 9th शेड्यूल। उसके बाद 10th शेड्यूल जोड़ा गया, जिस 9th शेड्यूल अब एक्टिव नहीं है, उसको उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है जुडिशियल रिव्यू, आप किसी कानून को जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 9th शेड्यूल, उसके बाद 10th शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं उसको, जहां जो दल बदल कानून है, पार्टी लोग छोड़ के इधर उधर पैसा के लिए कर लेते थे, तो उसके लिए जोड़ा गया नया जो है प्रोविजंस, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, तो दैट वाज 10th शेड्यूल। उसके बाद फिर जुड़ा 11th और 12th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल में हो गया पंचायती राज को लेके सारी बातें दी गई हैं, और 12th शेड्यूल जो हो गया वो अर्बन एरियाज के लिए सारा उसमें दिया हुआ है 74। तो वही है 12th शेड्यूल में आपके देख लेंगे अर्बन एरियाज के लिए सारा प्रोविजन दिया गया है। नियम बना ही सकता है किस पे, स्ट्रक्चर में आ गया ना वो हाँ देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन लोकल बॉडीज। तो जिस तरह रूरल बॉडीज को पावर 29 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर किया गया, वैसे ही जो शहरों से जुड़े हुए मैटर्स हैं वो इनको ट्रांसफर किया गया अर्बन लोकल बॉडी, शॉर्ट में ULB लिख देते हैं। दीज फंक्शंस हैव बीन लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे दिया कि जो उसके फंक्शंस हैं या जो भी चीजें और भी हैं इससे जुड़ा हुआ 74th अमेंडमेंट से, वो आपके 12th शेड्यूल में दे दिया गया है। नाउ
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। ऑल स्टेट्स, क्योंकि देखिए क्या है कि ये स्टेट लेवल का चीज है। अमेंडमेंट किया किसने? यूनियन गवर्नमेंट में, लेकिन वो अप्लाई कहाँ होना है? लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल, विलेज लेवल, यानी स्टेट के अंदर में। तो जरूरी था कि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी उसके लिए कानून बनाए, क्योंकि स्टेट के अंदर में वो नहीं ना लगा सकता है भाई। केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट के लिए अंदर कानून नहीं ना बना सकता है। स्टेट के अंदर का कानून तो स्टेट ही ना बनाएगा। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, संविधान में मैंने बताया था कि पहले क्या है, सब ने अपने अपने कानून बनाए हुए थे, उसके हिसाब से उनके यहाँ पंचायती राज वगैरह चल रहा था। तो सारे स्टेट्स में अलग अलग कानून थे, किसी का कुछ है, किसी का कोई 3 टायर है, कोई 2 टायर है, कोई 4 टायर बनाए हुए है, कोई है ही नहीं। तो इस तरह से सबके अलग अलग कानून थे। तो इनको होमोजीनियस, यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्या किया केंद्र सरकार ने कि सीधा सीधा ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करके प्रोविजन कर दिया कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको फॉलो करना पड़ेगा, तो उनके नियम कानून भी उनको उसी के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, नहीं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि सभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने जो पंचायती राज के लिए कानून थे वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में नया अमेंडमेंट हुआ था उसके हिसाब से उन्होंने लॉ बनाए। 1 साल का समय दिया गया था, पढ़ाया आपको। वही कह रहा है कि ऑल स्टेट्स हैव नाउ पास्ड अ लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। ठीक है, हाँ। ड्यूरिंग द 10 years since these amendments came into force, that means 1994 to 2004, most states have had at least 2 rounds of elections to the local body। 10 साल में कम से कम 2 बार चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि नियम था 5 साल तक रहेगा, उसके बाद आपको चुनाव कराना है। अगर पहले खत्म हो गया तो फिर आपको 6 महीना में चुनाव कराना है। तो कहा जा रहा है कि 10 सालों में हर स्टेट में कम से कम 2 बार चुनाव हो चुके हैं। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड अ फ्यू अदर्स हैव इन फैक्ट हेल्ड 3 इलेक्शंस सो फार। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ और राज्यों में तो 3 बार हो चुके हैं पंचायतों के चुनाव जो है। ओके, रीड एन इमेज, एक यहां दिया हुआ, क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आमरा गांव में आमी राज। ठीक है, हमारे गांव में हमारा ही राज होना चाहिए, हमारे गांव में कोई बाहर से आके राज नहीं करना चाहिए। दिस इज द स्पिरिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, दिस फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल अबाउट लोकल गवर्नमेंट। लोगों का जो सोच होती है कि भाई गांव में हमारी तरह से चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आमरा गांव में आमी राज। ठीक है, ये जो है आपका शायद असमिया में लिखा हुआ है या बंगाली में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आमरा गांव में आमी राज। पीपल डोंट वांट ओनली फॉर्मल लॉज। ठीक है, लोगों को सिर्फ कानून नहीं चाहिए, खाली नहीं कि कानून बना दिया और उसको, दे वांट जेन्युइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज। उनको चाहिए कि जो कानून बने हैं उनका जो है वो कार्यान्वयन भी हो, उनको लागू भी किया जाए। ठीक है, सो दे वांट जेन्युइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज। ये नहीं कि खाली कानून बना दिया बस चल रहा है वैसे ही जो पहले चल रहा है। सो राइट ब्रीफली व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्लोगन। तो यहाँ कहा जा रहा है आपको कि थोड़ा लिखिए इसमें, आप सोच के आपको क्या लगता है इस नारे के बारे में। वी आर द गवर्नमेंट हेयर इन द विलेज, मतलब गांव में हम ही सरकार है, हमारी सरकार होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसा ये जो है स्लोगन है। आइए, टुडे देर आर मोर देन 600 जिला पंचायत। आज हमारे देश में 600 से ज़्यादा, क्योंकि 600 से ज़्यादा जिले हैं तो उनमें 600 से ज़्यादा जिला पंचायत हैं। अबाउट 6000 ब्लॉक, 6000 लगभग ब्लॉक है पूरे देश में। जैसे आपने देखा आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक हैं? ब्लॉक आपके डिस्ट्रिक्ट में शायद 29 ब्लॉक है। अच्छा, हाँ, 29 है ना? नहीं 29 क्या था वो?
एक मिनट 4 वीडियो बैठता है। ब्लॉक तो नेट नहीं चल रहा है। हाँ नहीं ठीक है, ब्लॉक ही बोल रहे हैं, ब्लॉक है। हाँ 29 ब्लॉक है। ये 4 वीडियो बैठता है, तो क्या कहते हैं? 4 वीडियो बैठता है हमारे इसमें। एक मिनट, इधर से उधर हो जाता है। तो नेट खोल लीजिए। नेट नहीं ना, फिर आज उसको बुलाए हैं इंजीनियर को, पता नहीं क्या है। छोड़िए बात में। नहीं 6000 ब्लॉक है, यानी नहीं ठीक बात है। ब्लॉक जो है आपके यहाँ, जैसे पटना में 23 ब्लॉक है, पटना में। तो हमारे एरिया में ज़्यादा है। हाँ तो आपके में 27 या 29 ब्लॉक है। तो वही है, हाँ देखे तो थे। पटना से ज़्यादा था लेकिन। हाँ ब्लॉक ही होता है, ठीक है। चार सब डिवीज़न होगा, हाँ 4 सब डिवीज़न होगा। एसडीओ 4 हुआ। हाँ भाई तो हम भी कंफ्यूज हो गए, आप कह रहे हैं 4 जो है सब डिवीज़न होंगे, ठीक है। ब्लॉक जो है, ब्लॉक जैसे पटना में 23 ब्लॉक है, ठीक है। जैसे एक फुलवारी शरीफ एक ब्लॉक है। सब डिवीजन कितना है? हैं सब डिवीजन कितना है? सब डिवीज़न यहाँ 6 है, 6 की 7 अब कर दिया है, ठीक है। जैसे दानापुर एक अलग सब डिवीज़न है, दानापुर एक अलग सब डिवीज़न है। पटना सदर है एक सब डिवीज़न, ठीक है। नाम है। पटना सदर, पटना पहले था 3 था, पटना सिटी, पटना सदर और एक और था, ठीक है। हाँ दानापुर, दानापुर पटना। हाँ सदर मतलब बीच का एरिया। सदर कहते हैं गवर्नमेंट एरिया को, जो है मेन, हाँ मेन एरिया को। बीच वाला जो एरिया। So today there are more than 600 जिला पंचायत, about 6000 blocks or intermediary panchayats and 2,40,000 ग्राम पंचायत in rural India। लगभग 2,40,000 ग्राम पंचायतें हैं। एंड ओवर 100 सिटी कॉरपोरेशंस। देखिए कॉरपोरेशंस कितने हैं देश में, लगभग 100 से ज़्यादा। 1400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज एंड ओवर 2000 नगर पंचायत इन अर्बन इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया आपको कि 2000 नगर पंचायत हैं, 1400 म्यूनिसिपैलिटीज हैं और 100 सिटी कॉरपोरेशंस हैं। 2000 ये पहले का डेटा है, उसको नोट करने का कोई मतलब नहीं है। आज बहुत ज़्यादा उससे हो गया होगा, 20 साल पहले, ये 20 साल नहीं 5-6 साल पहले का डेटा। पंचायत कितना होगा तब? पंचायत वही, पंचायत तो नहीं बदले होंगे, क्योंकि पंचायत तो जितना है उतना ही ना रहेगा। पंचायत कितना होगा? 2.5 लाख हो गए होंगे। इतना गाँव है? गांव तो 6 लाख से ज़्यादा है, गांव तो 6.5 लाख गांव है। एक गांव पे एक पंचायत नहीं ना रहेगा। पंचायत का क्या एरिया है? कैसा क्या है? पंचायत का एरिया नहीं, पॉपुलेशन पर होता है। उसका कितना है? अब उसका मुझे देखना पड़ेगा। तो वो स्क्वायर नहीं है? नहीं खाली पॉपुलेशन पर है। हाँ पॉपुलेशन पर है, मोटा मोटी तौर पर है। अगर वो पॉपुलेशन जैसे एक गांव में ही हो जा रहा है, ठीक है, तो या थोड़ा 1.5 गांव पर, एक गांव का आधा एरिया पड़ रहा है, ठीक है। हाँ नहीं तो जनरली एक गांव को पूरा एक पंचायत में ही रखा जाता है, ठीक है। तो छोटे बड़े गांव मिला के वैसे वो किया गया है सब अपना। मोर देन 32 लाख मेंबर्स आर इलेक्टेड टू दीज बॉडीज एवरी 5 ईयर्स। कितने लोगों का चुनाव होता है? 32 लाख लोगों का चुनाव होता है। पंचायत है, पंचायत और सिविल सर्वेंट में वैल्यू किसका है? पावर तो पंचायत को मिल जाएगा क्योंकि इलेक्टेड है। कल मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इंटरव्यू आ रहा था हिमाचल प्रदेश के चैनल पर, जो है डीडी हिमाचल पर। उसमें एक सरपंच से ही बात हो रही थी, और इतना बड़ा बढ़िया पढ़ा लिखा बहुत ज़ोरदार सरपंच था। मैं उसका, लेकिन उसका देखा, उस कल तो नहीं अवेलेबल कराया था ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे। बहुत बढ़िया, तो वो डिस्कशन इसी पर हो रहा था,
ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट पर। तो उन्होंने बता रहे थे पंचायतों सरपंच को क्या क्या पावर दिए गए, ये है बहुत बढ़िया से बता रहे थे, ठीक है। तो हाँ, तो सरपंच, क्योंकि उन्होंने भाई दिखाया, दमखम दिखाया कि भाई हम संवैधानिक संस्था हैं, हमको संविधान में हमारा पद नाम दिया गया है। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। पंचायत को ही सरपंच कहते हैं। हाँ, पंचायत का जो मुखिया है उसको सरपंच। अच्छा, तो मतलब कि उसके सामने आईएएस आईपीएस का भी कोई वैल्यू नहीं? नहीं, आईएएस आईपीएस का वैल्यू क्यों नहीं है? आईएएस आईपीएस तो आपका जिला लेवल पर ना हो गया जी अफसर, गजब बात है। आईएएस आईपीएस तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ना हो गया। तो वही पावर मतलब उसके सामने मतलब एसडीओ का वैल्यू नहीं है? नहीं, वैसा एसडीओ, देखिए बात यह है, आप वैसे देखिए कि संवैधानिक पोस्ट है। पंचायत जो है वो पंचायत स्तर पर है, वो पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन के ऊपर है? मुश्किल से मुश्किल 400-500 होगा। पंचायत कितना पॉपुलेशन पर रहता है, समझ रहे हैं? और यहाँ सब डिवीज़न का मतलब है कि वो कितना पॉपुलेशन देख रहा होगा, बहुत पॉपुलेशन देख रहा होगा, फिर डेफिनेटली पावर्स उसको। लेकिन हाँ, पावर्स कहने का मतलब देखिए, जहाँ जिसका जो है, अब पंचायत में आप चले जाइएगा तो वहाँ तो उसी का चलेगा भाई, पंचायत में आप चले जाइएगा तो वहाँ तो सरपंच का ही चलेगा, वहाँ दूसरे का नहीं चलेगा। वहाँ तो सही बात है कि डीएम का भी नहीं चलेगा, अगर कहने का एक बात आ जाए। हाँ, क्योंकि वहां पर तो वही बॉस है, वही उसने कहा ना पंचायत, उसने सरपंच में कि भाई कानून बना सकता है ना? हाँ बिल्कुल, ये नियम कानून नहीं बना सकते हैं। वही ना बात है। हाँ, तो उन्होंने वहां पर एक बात कही कि हम लोग जो है, हम लोग को जो पावर है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। कैसे? कहे कि देखिए हम लोग में क्या है कि अगर कोई शिकायत करता है तो सरपंच को ही पावर है कि वो वहां जांच भी जाके कर सकता है और वही फैसला भी सुना सकता है। ये पावर इंडिया में और किसी को नहीं है। जांच करने वाला कोई और होता है, जैसे आप कोर्ट में जाते हैं तो जांच वहां करने वाली पुलिस होती है और उसका फैसला फिर करता है कोर्ट। कोर्ट को जांच करने का पावर नहीं है। हाँ, लेकिन इसको क्या है, वही खुद जांच भी करेगा और वही खुद फैसला भी करेगा। देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ उनको एडिशनल जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन उसको उन्होंने पॉजिटिव सेंस में बताया। भाई कोई ये भी कह सकता है कि अरे भाई यहाँ तो बड़ा हेडेक है, हम ही को सब काम करना है, तुम ही जांच भी करो, तुम ही फैसला भी करो, तुम ही ये करो, तुम ही वो करो। कोई ये भी कह सकता है भाई शहर में इस सब में बढ़िया है कि भाई पुलिस करेगी बाकी काम, हमको खाली जो पुलिस ला के दे देगा मामला उसका फैसला करना है। लेकिन हाँ, वो कहे कि हमको ये, हम ही लोग हैं जो हमको खुद जांच भी हम ही करेंगे और फैसला भी हम ही देंगे, दूसरा कोई इसमें दखल नहीं दे सकता है। हाँ, वो फाइनल है। तो वो फैसला सुनाएगा तो लॉ के तहत सुनाएगा कि आपने कुछ भी सुना सकता है। अब वो जो सरपंच को वहां रहेगा, हालांकि उसको भी तो उसकी समझ पर है ना, वहां उसके लिए कानून नहीं है, वो उसकी समझ पर है। 6 महीने के लिए हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाए। हाँ, तो जो लॉ में थोड़ी ना लिखा होगा कि अब वो उस पर छोड़ा गया है। खैर कर सकता है। हाँ, अपने जगह तो उसको पावर है ही, सही बात है। लेकिन अगर कोर्ट में जाएंगे तो कानून कोर्ट में लिखा हुआ उसके तहत तो फैसला सुनाएगा। कानून के तहत नहीं। देखिए, ये सब चीज के लिए कानून नहीं है। गांव के स्तर के लिए क्या कानून है? गांव के कोर्ट में वो तो उसका जो है वो उसी का वो उस पर छोड़ दिया गया है, वो उसी पर गांव में वही सुप्रीम, उसमें दूसरा कोई बाहरी दखल नहीं दे सकता है गांव के लिए। इसीलिए वो बोले ना कि अपने जगह पर उसका पावर है, गांव के लिए तो वही है बस। कोर्ट में तो जो किताब में लिखा हुआ है वही के आधार पर किताब में फैसला सुनाना है, किताबें के तहत देख के फैसला सुनाएगा। लेकिन गांव में इस तरह का नहीं, उसके मन पर है। मान लीजिए वो कहता है कि फांसी दिलवा देने के लिए, तो फांसी कैसे दिलवा देगा? वो बात नहीं, सिविल मैटर्स उसको दिया गया ना, ये सब अपराध वगैरह का थोड़े उसको दिया गया है। सिविल मैटर्स है, ठीक है, या क्रिमिनल मैटर है तो वहां तो पुलिस देखेगी, क्रिमिनल मैटर में उसको थोड़े है।
नाउ ऑफ दीज एटलीस्ट 13 lakhs आर वीमेन। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 32 लाख मेंबर्स का चुनाव होता है ये शहर और गांव में संस्थाओं में मिला के, अर्बन लोकल और रूरल लोकल बॉडीज में, जिसमें कि एटलीस्ट 13 lakhs आर वीमेन, 13 लाख महिलाओं का भी चुनाव होता है। इन द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी तरफ हम स्टेट के जितने स्टेट के असेंबली हैं, पार्लियामेंट है, इन सबके मेंबर्स को मिला दें तो मुश्किल से 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और लोकल बॉडीज में कितने हैं? 32 लाख। With local bodies, the number of elected representatives has increased significantly. तो लोकल बॉडीज का एग्जिस्टेंस में आ जाने से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। The 73rd and 74th amendments have created uniformity in the structures of पंचायती राज and नगरपालिका institutions across the country. तो ये जो अमेंडमेंट्स के आने से ये हुआ, अमेंडमेंट्स के पहले भी ऐसी संस्थाएं देश में थी। देयर वर सच रूरल एंड लोकल बॉडीज इन दिस कंट्री बिफोर अमेंडमेंट्स, बट एवरी स्टेट देयर वर डिफरेंट स्ट्रक्चर, देयर वर डिफरेंट लॉज, ओके, देयर वर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट फंक्शंस. So after passing of these amendments were passed, that is why the reason behind passing was to make uniform bodies all over the country. एक जैसी सबका काम हो ताकि उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जा सके, नहीं तो आदमी पागल हो जाता था, यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, यहाँ ये कानून वहाँ वो कानून, तो कैसे उसको समझ में आएगा, कैसे वो करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी केंद्र सरकार. तो इसी के लिए अमेंडमेंट्स किए गए ताकि दे हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ पंचायती राज एंड नगरपालिका इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री. The presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people's participation in the government. तो ये क्या है, लोगों को सरकार में भागीदारी का मौका देते हैं. भाई चुनाव लड़िए या चुनाव में वोट दीजिए, अपना मुखिया चुनिए या मुखिया बनिए, लोगों के लिए सरकार का जिम्मेदारी निभाइए. तो दे गिव एन अपॉर्चुनिटी एंड एटमॉस्फेयर, एक माहौल वैसा क्रिएट होता है जहां लोग सरकार से जुड़ते हैं, सरकार में भागीदारी अपना पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ हमारी सरकार, हमारा गांव में कैसे चले, कौन हो मुखिया, क्या भाई मुखिया के लिए वोट देते हैं तो भाई फैसलों में भी अपना वो करते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ जाए, क्या किया जाए गाँव में, कैसे किया जाए. उसी तरह शहरों में है. द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर विमेन at the panchayats and nagarpalikas has ensured the presence of a significant number of women in local bodies. तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण किया गया है उससे जो है ये संभव हो पाया है कि अच्छी खासी संख्या में महिलाएं भी इन लोकल बॉडीज में रहें ताकि महिलाओं का पक्ष, महिलाओं के हिसाब से भी फैसले सब किए जा सके. As this reservation is also applicable for the positions of सरपंच and अध्यक्ष, भाई सरपंच अध्यक्ष पद के लिए भी रिजर्वेशन है. A large number of women elected representatives have come to occupy these positions. तो जैसा हमने अभी पढ़ा था, कुछ लेडीज का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, तो वैसे ही बहुत सारी महिलाएं भी जो है जो इन पदों पर जो है अपना जिम्मेदारी निभा चुकी हैं. There are at least 200 women अध्यक्षास इन जिला पंचायत. जिस समय ये किताब लिखी गई उस समय कम से कम 200 महिलाएं जो है वो जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर रही हैं. Another 2000 women who are president of ब्लॉक और तालुका पंचायत. 2000 महिलाएं जो है वो ब्लॉक लेवल पर या तालुका पंचायत की अध्यक्ष थी. एंड मोर देन 80,000 women सरपंच इन ग्राम पंचायत. और गांव में पंचायत के स्तर पर 80,000 से ज़्यादा महिलाएं सरपंच उस समय थी. ओके, नाउ यहाँ न्यूज़पेपर के कुछ रिपोर्ट्स यहाँ दिए गए हैं, ठीक है.
तो उससे जुड़े हुए कुछ इश्यूज यहाँ आपको न्यूज़पेपर्स में दिखाए गए हैं, देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में डकैतों का दबदबा। भाई यहाँ भी इलेक्शन में मैल प्रैक्टिसेस, लोगों को डरा धमका के वोट, हाँ रॉन्ग बैड प्रैक्टिसेस। तो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत में डकैतों का दबदबा, राज्यपाल ने रिपोर्ट मंगाई। ठीक है, चुनाव में जो है डकैतों से जो है वो डरा धमका के वोटिंग करवाया। कांग्रेस टू क्या है, दब गया है, जिला पंचायत जेडीएस टू, अच्छा कौन क्या लिखा है, खैर। सरपंच रैली टर्न्स वायलेंट इन आंध्र प्रदेश। सरपंचों की रैली आंध्र प्रदेश में वो हिंसक हो गई। ठीक है, तो ये सब यहाँ है। पंचायती राज ओनली इन नेम इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सिर्फ नाम के लिए पंचायती राज चल रहा है, वहाँ काम नहीं ठीक से कर रहे हैं। प्रस्तावित ग्राम न्यायालय विधेयक का विरोध हो रहा है उत्तरांचल में। ठीक है, एक ग्राम न्यायालय विधेयक आया था। ठीक है, ग्राम न्यायालय बिल भी आया था। ठीक है, तो वो जो है उसमें था कि गांव स्तर पे भी कचहरी होनी चाहिए। कचहरी था, ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट इसमें दिया गया था कि विलेज लेवल पर भी वहीं छोटे छोटे कोर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, वो बिल आया था हम लोग के सामने ही, शायद वो पता नहीं, पास तो शायद हो गया था, पास हो गया था बिल, वो जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वो। इम्प्लीमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट में ये पास हो गया था ग्राम न्यायालय बिल। तो इसके तहत था कि भाई गांव के लेवल पर भी छोटे छोटे कोर्ट्स होने चाहिए, जो वही फैसला आदमी को कहीं जाना नहीं पड़े, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। We also have more than 30 women mayors। अब शहरों की बात हो रही है। तो कह रहा है कि we have also more than 30 women mayors in corporations। ठीक है, जैसे यहाँ कौन थी मेयर, यहाँ सीता साहू अभी है पटना में। दिल्ली में भी मेयर थी, हम लोग थे उस समय। कॉरपोरेशन में होता है, कॉरपोरेशन का हेड होता है, शहर का हेड होता है। हाँ, शहर का हेड होता है, पूरे शहर का। हाँ, जैसे दिल्ली शहर जैसा हुआ कॉरपोरेशन, या पटना शहर हुआ ना, तो पूरे पटना के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है। हाँ हाँ, तो उसमें मेयर कहा जाता है। जैसे एक दिल्ली की मेयर है, कलकत्ता की मेयर है, पटना की मेयर है। दिल्ली की मेयर उस समय रजनी अब भी हुआ करती थी, बीजेपी की है। तो देयर आर मोर देन 30 वीमेन मेयर का एक समय पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट माना जाता था। अब चेंज हो गया बहुत। जैसे लंदन का मेयर होता था, उसको प्रधानमंत्री से कम नहीं वजन होता था। लंदन का, लंदन का जो समय ब्रिटिश में कह रहे पीरियड में, अच्छा हाँ, तो लंदन का मेयर, या अभी भी न्यूयॉर्क का मेयर है, या जैसे दिल्ली का मेयर, ये सब का बहुत वजन होता है मेयर पोस्ट का। पूरे शहर का ना बॉस है, समझ रहे हैं, पूरे बड़े शहर का इंचार्ज है। कलकत्ता का मेयर ये भी रहे, मेरे ख्याल सुभाष चंद्र बोस भी एक आध बार मेयर रहे थे कलकत्ता के, जो सिविल सर्विस में चुनाए थे। तो एनीवे 30 women mayors in corporations, over 500 women अध्यक्षास ऑफ टाउन म्यूनिसिपैलिटीज। छोटे शहर में म्यूनिसिपैलिटी का 500 महिलाएं अध्यक्ष थी, एंड नियरली 650 नगर पंचायत हेडेड बाय विमेन। और नगर पंचायतों की भी 650 लगभग महिलाएं थी। मेयर का अलग से चुनाव होता है। हाँ, जैसे गांव में हुआ ऐसे शहर में होता है ना चुनाव, तो शहर में मेयर पोस्ट के लिए चुनाव, एक ही चुनाव होता है। जैसे म्युनिसिपैलिटी का भी होगा, हाँ काउंसिल का भी होगा, हाँ, और कॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन में, हाँ एक ही बार में होगा, एक ही साथ तो होगा। अलग अलग जहाँ पे जो होगा उसके हिसाब एक ही दिन में हो जाएगा। तो उसी दिन सेम दिन मेयर का भी होगा। सबका, सबके लिए वोट पड़ता है एक ही दिन। Women have gained
गर्मी लग रही होगी। हाँ जी, अरे क्या कहें, कल एसी लगवा रहे थे, वो तो बड़ा लेट कर दिया, 12 बजे रात में जाके ख़त्म हुआ है काम, फिर हम 2 बजे सो ही पाए। कल से यही वही अपना नॉर्मल टाइम है। वही स्प्लिट एसी लगवाया डाइकिन का, 1 टन का ही लगवाया। ज़रूरत नहीं होता है। देखिए अब 1.5 टन, दूसरा बात है कंपनी पर मैटर करता है। देखिए बहुत से कंपनी जो है ना बोल देता है 1.5 टन, लेकिन उसका परफॉर्मेंस 1 ही टन होता है, खाली लिख देता है। हाँ, और इसका है कि 1 टन का भी 1.5 टन के बराबर परफॉर्मेंस करता है। बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल। ये टेम्परेचर से इनका मतलब नहीं होता है, इनका मतलब होता है एरिया से। पहले बात समझिए, लोग नहीं समझते हैं इस बात को। इसका होता है एरिया से, कितने बड़े एरिया में आप उसको लगा रहे हैं, कितना एरिया में उसको ठंडा करना है, कोई खास नहीं, ठीक है ना। तो एरिया पर होता है, लोग ये बात को नहीं समझते हैं। अच्छा, उसको इनडायरेक्टली लोग क्या करते हैं, भाई नेचुरल बात है कि अब जो बहुत बड़े के लिए बना है और उसको आप छोटे एरिया में लगा देंगे, उसको आप छोटे एरिया में लगा देंगे तो नेचुरल उसका इफेक्ट ज़्यादा आपको फील होगा। समझ रहे हैं, इफेक्ट आपको ज़्यादा फील होगा। भाई देखिए, आप नल खोलते हैं, अब मोटा पाइप से पानी बह रहा है, उतना फोर्स नहीं ना लगेगा आपको। अब वही में आप दम पतला पाइप जोड़ दीजिए, क्या होगा, दम मारेगा तेज धार, आपको लगेगा कितना तेज हमको धार दे रहा है। समझ गए बात, वही चीज़ है। तो आपको जब थोड़ा पानी चाहिए तो आप पतला भी पाइप यूज कर सकते हैं, उतना ही प्रेशर दे देगा आपको, हैं। जब थोड़ा ही सा चाहिए तो वही है। टनेज जो होता है एक्चुअली एरिया पे होता है, इसको लोग समझ में नहीं करता है। 99% लोग नहीं समझता है। वो सोचता है कि ठंडा गर्म से ज़्यादा पावर, ज़्यादा ठंडा करेगा। ज़्यादा ठंडा नहीं करता है, ये भी जितना ठंडा करेगा दुनिया का कोई एसी भी इतना ही ठंडा करेगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। वो एरिया पर होता है कि आपको छोटे एरिया में लगाना है, बड़े रूम में लगाना है, हॉल में लगाना है कि बहुत बड़े हॉल में लगाना है। समझ गए, बिल्कुल काफ़ी है। और दूसरी बात है कि हमको शिमला नहीं बनाना है पटना को। भाई एक होता है आदत पर, आदत, किसी को चाहिए कि दम लगे कि हाँ दम बर्फ जम रहा है, वैसा ठंडा रहे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पावरफुल फिर लेना पड़ेगा, ज़्यादा टन का लेना पड़ेगा। हमको है कि भाई हमको खाली गर्मी नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल रहे, तो उसके लिए हम ये तो बोल रहे हैं कि शिमला तो यही बना देता है, कुल्लू मनाली जो, समझ गए। तो वो ये टनेज, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स उसमें देखने पड़ते हैं। रूम है, अब किस तरह का जगह है, क्या वो जगह है ऐसा, जैसे एक है कि जहाँ कामकाज चल रहा है, लोग बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं लगातार, वहाँ परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए होता है। अब एक लिविंग रूम है, घर का है, वहाँ जो आदमी बैठा हुआ है, बंद है, रूम बंद है, वहाँ आपको बहुत कम से हो जाएगा। क्योंकि किस लिए, अब आप जितना पावर का लगाएंगे वो बिजली उतना ही आपका खाएगा, उसका मशीन उतना ही एक्सपेंसिव होगा, आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में उतना ही आपको खर्च पड़वाएगा। तो क्या करना, उसको खाली दिखाने के लिए, अपना खुशी के लिए, शुरू में जानते हैं कुछ दिन का खुशी खाली लगता है, अरे 2 टन का हम लगा लिए, 1.5 टन का लगा लिए, उसके बाद एक महीना में वो शांत हो जाता है, सारा चीज उसका दिमाग ठंडा हो जाता है जब बिल आने लगता है तब। समझ गए। आपको मान लीजिए कहीं हाथ धोने के लिए पानी का नल का जरूरत है और उसके लिए आप लगाइए इतना बड़ा मोटर वहां लगवा दिए, उससे क्या फायदा। खाली खुशी शुरू में न लगेगा कि हम इतना बड़ा मोटर लगाए, अरे आपको हाथे धोना है वहां पर, थोड़े आपको टंकी भरना है। ये सब समझदारी की बात है, ठीक है। हाँ, वो जो देखिए, वो जो चीज है जो आप बोले कि सर इतना टेम्परेचर, ठीक है, कल ही मैं वो भी लोग से बात कर, टेम्परेचर में क्या है कि एक तो एसी का इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आप कहाँ लगवा रहे हैं उस पर टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। एसी का काम पहले समझना जरूरी कि कैसे काम करता है और उस हिसाब से आप उसको लगवाइएगा, तो आप समझ लीजिए कि 10 डिग्री का आपको बेनिफिट हो जाएगा, 10 डिग्रीज का। जैसे आप सामने वाले घर में यहाँ से देखिएगा, सामने लगा हुआ है,
उदम वाहियात तरीके से लगाया हुआ है एसी, समझ गए। तो उसको जो है वो ऐसा लगा दिया है, तो उसको मतलब समझिए कि वो 10 डिग्री ज़्यादा के लिए बिजली बिल भर रहा है। अगर टेम्परेचर 35 है तो उसको 45 के हिसाब से बिजली भरना पड़ रहा है। जो 45 पे एक नॉर्मल आदमी को जितना बिजली देना पड़ेगा एसी चलाने का, वो 35 पर ही उतना भरेगा। भाई उसको कूलिंग वो करना है, वो हीट डिसिपेट करता है, ठीक है, हीट डिसिपेट करता है। करता क्या है, कंप्रेसर होता है वहाँ, गैस को कंप्रेस करता है। जब गैस कंप्रेस होती है तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, पढ़े होंगे, हॉट हो जाती है, यहाँ आता है ऊपर, तो यहाँ वो रिलीज करता है। गैस जब फैलती है तो वो ठंडी होती है, बॉयल्स लॉ है ये गैसेस। जब वो कंप्रेस होती है, देखिए सिलेंडर में आप बाहर निकलता है तो हवा ठंडा लगता है ना, सिलेंडर से जब गैस आप कभी देखे होंगे, छू के हाथ से फील किए होंगे, ठंडा लगता है, क्योंकि वो बाहर निकलता है जैसे ही, तो वो कूलिंग। इसी प्रिंसिपल पर फ्रिज एसी सब इसी पर काम करता है। कंप्रेसर होता है, वो गैस को कंप्रेस कर दिया, उसमें जो उसको एनर्जी लगा, बिजली वही लगता है, फिर वो उसको रिलीज करता है, तो खुले में फैलता है बड़े एरिया में, तो ठंडा, तो वो ठंडा कर देता है। तो जब आप उसका हीट जो कंप्रेस हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो उसका हीट आप बाहर छोड़ रहे हैं वो आउटडोर यूनिट में। तो वो आपको ऐसी जगह लगाना है कि जहां पहले से बहुत गर्म नहीं हो, या उसको उस गर्मी को आप कम कर सके, तो बेहतर काम, जैसे ढक दिए उसको, अब डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ रहा है, पहले ही से उसको मेटल को तपाए हुए रहेगा, पहले से ही मेटल उसका हॉट हो जाएगा पूरा धूप में, उसमें कितना हीट और लूज करेगा, वो तो पहले अपने ही गर्म हुआ पड़ा है, बाहर एनवायरमेंट में कितना छोड़ेगा गर्मी जो है, समझ गए। तो उसके कारण क्या है, लोग कहता है एसी फेल हो गया, एसी फेल हो गया, दिल्ली में एसी काम में नहीं करता। अरे आप लगवाते नहीं हो ठीक से, आपको उसको शेडेड एरिया में लगाना चाहिए, जहां उस पर डायरेक्ट सनलाइट, अभी डायरेक्ट धूप में लगा दिया है, 24 घंटा उस पर जितना समय सनलाइट रहेगा धूप पड़ेगा उस पर, सामने आप निकल के देखिएगा लगा हुआ आउटडोर यूनिट, तो वो तो वैसे ही उसका आपका 10 डिग्री कम हो गया एफिशिएंसी, समझ गए। हमने लगवा दिया है पीछे इस साइड, जो कि मकान से कवर्ड है, धूप उस पर पड़ना नहीं है किसी टाइम। सब देखिए, इधर सामने मकान में देखिए शेडेड में अपना एकदम बालकनी में लगाए हुए हैं, इसके दीवार के अंदर देखिए, अभी आप जाके देखिए निकल के, आपको सामने नजर पड़ेगा, दम दीवार से अपना बालकनी जैसे ये है ना छज्जा, उससे ढक रखा है, इतना सटीक लगाए हैं, उनको जो है बहुत कम बिजली पर दम चिल कर देगा। तो ये होता है तरीका लगाने का, कहाँ आप लगा रहे हैं, किस तरह से लगवा रहे हैं, और थोड़ा रूम का कैसे वह मेंटेन कर रहे हैं। तो आप बहुत कूलर के बिजली पर भी आप एसी चला सकते हैं, और वही जो है आपको 10,000 का बिल भी दे सकता है महीना में। तो जब बिल आना शुरू होता है, पहले खरीदते समय मजा बहुत लगता है, इतना टन का लगा लिया, इतना टन का लगा लिया, उसके बाद जब बिजली बिल पसीना, तो हम देखे हैं, हम दिल्ली में देखे हुए हैं कि एसी लगने के बावजूद भी पंखा कूलर चल रहा है। एसी चला लगा तो लिया है लोग, लेकिन चलाने का हिम्मत नहीं है। दिल्ली में हम देखे हुए हैं कि लगाए हुए हर जगह एसी, लेकिन एसी चल एक भी नहीं रहा, कूलर ही चल रहा है। भाई बिजली बिल भी तो देना पड़ेगा, कॉस्ट कुछ नहीं है एसी का लगाने के लिए, उसका बिजली बिल हो जाता है कि वो पसीना छोड़ा देता है तुरंत। अरे कॉस्ट तो आप लगाइए ना, 30,000 से लाख 2 लाख जितना का लगाना है, वो कुछ नहीं है। आज जो आपको महीना में 8-10 हज़ार बिजली बिल करवा देगा कहीं, तो आप 3 महीना में उससे ज़्यादा बिल भरना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो वो यूजेज पर है। ये तो इंस्टॉलेशन के साथ लगभग पड़ गया वही 35 के आसपास। हाँ तो उसमें वो हमको थोड़ा इस पे दे देता है, अमेजन बोले ना कि हमारा एकदम सगा मित्र हो गया है, तो हमको डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा दे देता है। 10,000 हमको लगभग कम कर दिया। 10,000? हाँ हाँ, तो बाहर वही जाते तो हमको 10,000 ज़्यादा ले लेता दुकान में जो है। वही हम बोले कि भाई रिलेटिव की
लगा दीजिए। हम कहे कि जा रहे थे, कहे कि जाइए ना दुकान से पसंद करके लगवा दीजिए। हम कहे कि दुकान से किस लगाइएगा, हम लगवा देते हैं आपको कम। वही कल रात में आया है 9 बजे, वो कर इतना बोल रहा है सर क्या करें। वो 2 बजे उसको बोला हुआ था, वो करते करते आया है जाके 9 बजे। बोला सर इतना अभी डिमांड है, गर्मी बढ़ गया, क्या करें, सब जगह लगवा रहा है लोग। जिसका अपोजिट जाए, जैसे मेरा रूम है अपोजिट डायरेक्शन में, सनराइज से पश्चिम दिशा में, और दोपहर को डेफिनेटली हमारे एरिया में चला आता है सब, अब पूरा गर्म रहता है। तो उस सिचुएशन में हमको हॉल के साइड उसकी साइड में लगवाना चाहिए। आप अपना देख लीजिएगा जहाँ उस पर धूप नहीं पड़े, कम से कम धूप पड़े, ऐसी जगह लगवा लीजिए। धूप ना पड़े एकदम नहीं पड़े। हाँ, तो आपको बेहतर कम बिजली बिल खर्चा होगा। अरे काम तो ऊपर भी उसमें करेगा, लेकिन वही है कि आपको बिजली का बिल आपका बढ़ जाएगा। और ये है कि बिजली का बिल जो है दम, हम तो बताए ना कि मेरा हमको फील भी नहीं होने दिया कि मेरा कुछ मतलब कूलर से कुछ भी ज़्यादा बिजली बिल लिया। डाइकिन बहुत इफिशियंट है। कितना पर चलाते हैं, कितना पर रखना चाहिए? हम ज़्यादा पर नहीं, हम 29 से नीचे नहीं ले जाते। अब 22 तो बहुत ज़्यादा कह दिए, हम 29 से नीचे नहीं चलाते हैं। तो कहेगा कि सर चलाते ही क्यों है फिर ठीक है, हम 29 से नीचे नहीं चलाते। 29 मेरे लिए पर्याप्त रहता है। बोले तो 29, हम 29 से 30 पर भी चलाते हैं। तो 22-24 पे चला सकते हैं। चला क्यों नहीं, चला आप 18 पे चलाइए। टेम्परेचर मतलब कि बिजली का बिल लेकिन फिर जाएगा। तो बिजली का बिल आपका बढ़ता जाएगा ना। फिर देखिए, तो बोले 18 पर भी आप चला सकते हैं चलाने के लिए। कॉमर्शियल बिल्डिंग में चलता ही है 18 पर। हाँ, तो उसका यूनिट 11 के आसपास तो हाँ, तो बिल भी भागेगा। कितना है, 6 है कि 8 है पर यूनिट? हम लोग 8 रुपये है। 8 रुपया। कॉमर्शियल का 11 रुपया है, कुछ उसी तरह से। जैसे कमर्शियल का हाँ ज़्यादा होगा, 11-12 होगा, 11 से ज़्यादा होगा। हम लोग को तो सब्सिडी दिए हुए सरकार, तब 8 पे चल रहा है। वैसे 10 रुपये हम लोग को रेट। हाँ, सब्सिडी पे है, सब्सिडी पे 8 किया हुआ है ओके, तो देखिए ये सब है लाइफ में अभिषेक, यही सब है चीज़, समझदारी। ये कॉमन सेंस, ठीक है ना, कि भाई किस चीज़ पर कि हाँ, तो नहीं बोले ना कि आपको खाली 1 महीने का खरीदते समय खुशी होगा, अरे 2 टन का लगा लिए, ठीक है, तो वो आपका बिजली भी तो उतना ही लेगा ना। वो तो कल आपकी जेब से जाएगा, थोड़े कि लगा के आप बैठ गया फ्री में चल रहा है फ्री में चलता था तो हम 10 टन का लगवा लेते ठीक है तो है कि अब महीने महीने जेब ढीला करना है ना उसमें। देखिए समझ गया अच्छा से। हाँ, इसलिए बताया कि कल बहुत कई फैक्टर्स होता है। अब जैसे एक ऐसा जगह है जहाँ लोग लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वहाँ क्या है ज़्यादा परफॉर्मेंस, क्योंकि लगातार हॉट होते रहेगा। हाँ, और एक जगह है कि रूम में है, अपना बैठा हुआ है, जो है बैठा हुआ है, अपना टीवी देख रहा है, कुछ कर रहा है, बैठा हुआ है, रूम लगा हुआ है, तो हाँ, तो वहाँ आपको बहुत ही कम पावर में आपको अच्छा ठंडा मिल जाएगा। हॉल में तो 1.5 टन खिल जाएगा, उसका बिजली का बिल हो जाएगा ज़्यादा। देखिए विमेन हैव गेन, नहीं होता क्या है इसका नतीजा ना कि एसी लगा हुआ है, चलता कभी नहीं है। लगवा तो शुरू में जोश में लोग लेते हैं, चलता कभी नहीं है। फिर हम तो यही दिल्ली में सोचते थे आज कि भाई एसी भी लगा हुआ है लेकिन पंखे चल रहा है, तो वो लोग आधा घंटा के लिए रात में चलाएगा एसी और ठंडा करके फिर बंद, और फिर पंखा कूलर चल रहा है। हम देखे हुए इस चीज़ को। हाँ, कि बस थोड़ा देर के लिए ठंडा कर दिया और उसके बाद फिर अपना एसी पंखा कूलर पर ही चल रहा है। भाई समझदारी है, क्या करेगा, बिल इतना आता है तो कितना पैसा भरेगा आदमी, ये सब ना चीज़ देखना है। इसलिए लोग वहाँ पर एसी कूलर पंखा तीनों रखता है, क्योंकि हाँ, और एसी का ऐसे वो लोग कूलर ही का, क्योंकि कूलर ही बहुत ठंडा करता है, ये तो कूलर कुछ नहीं है ये सब।
ये तो कूलर समझिए, जबकि मेरा ही कूलर दम जड़ा देता है तुरंत, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि खाली इसमें कि इस कूलर का मेंटेनेंस थोड़ा खोजता है ना, खास करके ये सब जो इनसाइड कूलर होता है। साल में 2 बार हाँ, और वो जो है वो कूलर्स, बड़े वाले कूलर्स वहाँ लगाते हैं लोग, और वो विंडो में लगता है बड़ा वाला कूलर सब बाहर से। वो भाई साहब ठंडा करता है, एसी से ज़्यादा वो ठंडा करता है, लेकिन खाली दिक्कत क्या है कि वो आपका ह्यूमिडिटी में काम नहीं करता है। ह्यूमिडिटी वाले महीने में साफ है वो आपको खत्म, तो इसके लिए एसी वहाँ रखते हैं लोग कि ह्यूमिडिटी वाले 1-2 महीने होंगे उसके लिए वो एसी चलाएंगे, बाकी टाइम तो वहाँ पंखा और कूलर से, ठीक है ना। तो ये समझदारी से है, आप लाइफ अपने हाथ में कैसे जीना है। देखिए नॉलेज जिसको होगा वो अपना समझदारी दिखाएगा। हम तो बोले, आप कह रहे हैं सर 22 पर रखते हैं, हमको याद नहीं है कि 29 से कम कभी, मतलब कभी कभी जैसे आती है मैडम बहुत गर्मी में तो तुरंत के लिए 28 कर देते हैं, बाकी हम लोग कभी 28 चलाते नहीं हैं, हम तो 29 या 30 पर ही रखते हैं। तो फिर पंखा तो चलाना पड़ता होगा। किस लिए पंखा किस लिए चलाएगा आदमी, जब ठंडाई है तो फिर पंखा किस लिए चलाना। ऐसे पंखा चलाना चाहिए इसी के साथ, थोड़ा सा बेटर, उसका हवा को फैलाता है, हवा को फैलाता है थोड़ा सा। थोड़ा चलाना चाहिए लेकिन तो ये है, ये तो भाई देखिए होता क्या है, अब बाबा रामदेव सब बता रहे हैं कि क्या क्या बीमारी, एसी जो ज़्यादा यूज़ करेगा उसको गठिया होगा, हम देख भी रहे हैं लोगों को, ये हड्डियों में सारे जॉइंट्स में, हाँ, आर्थराइटिस, नहीं क्या बोलते हैं इसको, आर्थराइटिस, हाँ, क्या बोलते हैं, हाँ, दूध नहीं पिएगा, नहीं दूध नहीं पे, दूध पीजिएगा भी, आप एसी यूज़ कीजिएगा तो गठिया करना ही करना है। ज़्यादा अगर एसी यूज़ करेगा आदमी अननेसेसरी और एक्सरसाइज ये सब नहीं करेगा तो उसको गठिया हो जाना है। तो आजकल देखिए ना, कम एज में गठिया का शिकायत देख रहे हैं, हमारे एज के लोग को गठिया हो रहा है। गठिया पहले क्या कहते थे कि 60-65 के बाद होता था लोग को, बुढ़ापे का बीमारी, हमारे एज में लोग गठिया से शिकार है। हाँ, फिर तो यही सब कारण है कि भाई लाइफस्टाइल उसको नहीं समझ में आता है कि कैसे रहना है, हेल्दी क्या है नहीं है। खैर देखिए, विमेन हैव गेन्ड मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। इससे पंचायती राज और शहरी संस्थाओं से ये फायदा हुआ है कि महिलाओं को एक, जब उनको जिम्मेदारी मिली, रिसोर्सेज पर उनको कंट्रोल मिला कि वो भी कंट्रोल कर सकती हैं, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। महिलाओं को क्या है, बेचारी जब से पैदा होती हैं उनको खाली डिमोटिवेट किया जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है। बताइए, एक आदमी है, पत्नी को 4 बच्ची हो गई है, उसको छोड़ने तक के लिए तैयार है। देखिए क्या बताएं, ऐसा मतलब उसके लिए हमको दुख है, महिला के लिए क्या हम कर सकते हैं, हम सोचते हैं। इधर भागलपुर तरफ की है, ठीक है। तो माने ये है कि बैकवर्ड कम्युनिटी से ही है, लेकिन कहने का मतलब हमको इतना तकलीफ लगता है कि बताइए, महिला का दुख हम समझ सकते हैं कि बताइए बेचारा, और पढ़ा आदमी को ये नहीं समझ है कि सर लड़का लड़की तो तुम्हारे कारण है, औरत के कारण थोड़े है। कैरियर तो मेल ही होता है, आपके वजह से होता है लड़का या लड़की, लेकिन बताइए ऐसा मर्दों ने धांधली किया हुआ है दुनिया में कि सब जीव औरत पर डाला हुआ है। हम तो कहे औरत सबको विद्रोह कर देना चाहिए मर्दों के खिलाफ। कितना बड़ा मतलब झूठ है, और औरतों को इस पर हरास किया जाता है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। औरतें बेचारी तो वही ना करें, जब से पैदा होती है तब बेटियों का वो होता है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, और फिर जो है होइए तो लड़की के तौर पर सब पर तंग करेगा लड़का लोग, और फिर शादी होए तो फिर पति और सब तंग करेगा ससुराल का आदमी से। खैर, तो इससे थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास बढ़ा है कि जब उनको भी एक जिम्मेदारी का पद मिला है, उसमें भागीदारी मिली है। तो सरपंच अपना शिकायत करेगा गाँव में। सरपंच क्या करेगा, परिवार के मामले में क्या करेगा सरपंच।
अरे समझा सकता है, और थोड़े और क्या करेगा वो, फैमिली के मैटर में नहीं ना दखल दे सकता है। समझा रहा नहीं मान रहा तो निकाल दिया गया, तो कंप्लेन करेंगे, फिर जाके रिपोर्ट लिखाएंगे ना पुलिस में। वो तो लिखा ही सकती है। ठीक है, रिपोर्ट लिखाने से क्या होता है, देखिए अभी आप नहीं समझते, शादी ब्याह होगा तब समझिएगा ये सब चीज़। रिपोर्ट से क्या होगा, शादी ब्याह जब उसको ठीक रखेगा ही नहीं घर में तो रिपोर्ट करा के क्या करेगी उसके खिलाफ, वो तो और दुश्मनी हो जाएगा आपस में। आदमी मिलजुल के चाहता है ना कि अच्छे से रहे। देखिए, their presence in these institutions has given many women a greater understanding of the working of politics. तो उनके इन संस्थाओं में होने से महिलाओं को भी जो है एक राजनीति की एक बेहतर समझ, वो समझती हैं कि राजनीति क्या होती है, कैसे चलती है, सरकार कैसे चलती है, तो उससे उनका राजनीति में भी भागीदारी बढ़ा है। In many cases, they have brought a new perspective and a greater sensitivity to discussions at local bodies. हालांकि बहुत से मामलों में महिलाओं के रहने से जो बहस होती है पंचायत में, जो फैसले लिए जाते हैं, वो जो है ज़्यादा बेहतर फैसले लिए जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि आदमी को भी औरत की बात हमेशा सुननी चाहिए, पत्नी हो या बेटी हो या बहन हो या जो हो, उसकी बात हमेशा सुननी चाहिए। औरत का एक बड़ा ही, अब हालांकि अब इसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते हैं, कई बार कुछ लड़कियों का दिमाग भी चढ़ा होता है तो उल्टा पुल्टा बात भी करती हैं बहुत, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल जो है, जहाँ भी अगर महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, तो उनकी बातों को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उनको उनका ज़िंदगी का तजुर्बा एक बड़ा ही अलग और बड़ा ही ग्राउंड लेवल का उनका तजुर्बा होता है। एटलीस्ट हम जरूर फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो हम मेल शोविनिस्ट में से नहीं हैं कि हाँ भाई हम पुरुष हैं तो हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वो वाली सोच बिल्कुल नहीं। हम मानते हैं कि नहीं, पुरुष क्या, पुरुष से श्रेष्ठ भी होती है महिला, ऐसा नहीं है, पुरुष के बराबर हम नहीं कहते हैं, पुरुष से श्रेष्ठ भी होती है, कई बार ऐसी महिला होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष भी अच्छा श्रेष्ठ हो सकता है, महिला भी श्रेष्ठ हो सकती है। तो इसीलिए महिलाओं को एक उनको सही वो देना चाहिए, और नहीं देता है तो जो पुरुष वो खुद अपने घाटे में रहता है। ऐसे ही हम लोग जब पढ़ते थे या पढ़ाते थे तो एक चीफ जस्टिस थे मार्कंडेय काटजू, सुप्रीम कोर्ट के, तो जजमेंट सुना रहे थे, तो जजमेंट सुनाते उन्होंने रिमार्क दिया कि देखो, जिस व्यक्ति को दे रहे थे फैसला, कि हम लोग का ये कहना है कि अगर पत्नी कहती है बाएं देखो तो बाएं देखना चाहिए, पत्नी कहती है दाएं देखो तो दाएं देखना चाहिए, पुरुष को इस हिसाब से उसकी बात सुननी चाहिए। अगर वो सुनता है तो हमेशा जीवन में फायदे में रहेगा। महिला कहती है, पत्नी कहती है कि रात है तो समझो रात है, कहती है दिन है तो समझो दिन है। तो हाँ, तो बड़ा पेपर में आया था, हाईलाइट हुआ था कि मार्कंडेय का रिटायर होने वाले थे कुछ दिन बाद। तो भाई अब बड़ा नाम था उनका मार्कंडेय काटजू का, तो कहे भाई काटजू साहब जज जो है ऐसा रिमार्क किए जो है कि भाई, और हम वो बोले कि मैं ऐसा ही करता हूँ और आप लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो सही बात है, मैं भी उस समय बड़ा सुन के हंसा था, उस समय आई वॉज नॉट मैरिड, ठीक है, लेकिन लेटर आई रियलाइज्ड द विजडम ऑफ हिज वर्ड्स। तो उन्होंने जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में ये जो है, जो जिन लोगों पर चल रहा था मुकदमा, उनको ये कहा कि हाँ, लेडीज़ का हमेशा बात सुनना चाहिए। अभी हम लोग गांव भी जाते हैं तो गांव में भी एक अलग माहौल रहता है, लड़के जवान जो है कहते हैं कि अरे भाई, जो महिलाओं की बात सुनने वाले हैं उनका अलग गुट है, और जो महिलाओं की बात नहीं सुनने वाले हैं, जो अपने मन से काम करने वाले हैं, वो इधर हम लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से गांव में सोच होती है कि भाई महिला का कोई सुन लेता है तो उसको लोग अलग गुट में डाल देते हैं। तो उनको बड़े बुजुर्ग ने हम लोगों ने समझाया कि देखो, महिलाओं का सुनोगे ना तो फायदे में रहोगे ज़िंदगी में हमेशा, कभी कोई गड़बड़ फैसला नहीं करने देंगी। अपने से आदमी बहुत सारे उल्टे सीधे फैसले भी कर लेता है। इन मेनी केसेस women were unable to assert their presence or were mere proxies for the male members of their family who sponsored their election. तो बहुत सारे, अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि महिलाएं अपना अधिकार या अपना
जो पहचान होता है इन पदों पर रहते हुए अपना नहीं वो इस्तेमाल कर पाती है, क्योंकि पुरुष उनको जो है वो उनको कुछ समझते नहीं हैं। ठीक है, पुरुष उनको उनके अधिकार उनका देने के लिए तैयार नहीं होते, या कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ अपने जो मेल मेंबर होते हैं फैमिली के उनके नाम पर खाली एक चेहरा दिखाने के लिए महिला के रूप में प्रॉक्सी, मतलब जस्ट अ शोइंग फेस। हाँ, जैसे कैसे प्रॉक्सी पहले अटेंडेंस कोई लगा देता था कॉलेज में, प्रॉक्सी बोलते थे, प्रॉक्सी लगा दिया कि कोई और बोल दिया अटेंडेंस जो है उसका। तो वैसे ही कहने का मतलब यह है कि जस्ट चूंकि वहाँ फीमेल को लेना है तो वो किसी मेल ने अपने किसी जानकार या अपनी रिलेटिव फीमेल को खड़ा कर देता है, प्रभाव उसी का होता है, खाली नाम के लिए वो चुन ली जाती है। तो ऐसा भी बहुत हुआ है इस देश में कि हाँ, प्रॉक्सी मीन्स लिटरेचर में शोइंग फेस, हाँ अ शोइंग फेस बस लिख दीजिए। प्रॉक्सी मतलब होता है दिखावे के लिए किसी की जगह कुछ, ठीक है, हाँ, दिखावे के लिए। तो जैसे यहाँ है कि खाली चूंकि ये दिखाना है कि महिला मेंबर है इसलिए वो महिला को किसी को रख देते हैं, बाकी जो कंट्रोल है वो पुरुष के ही हाथ में होता है। तो महिलाओं का इसलिए भी मिसयूज होता है, और इस चीज़ को दिखाया है। देखिए पंचायत सीरीज क्या देखे थे आप? पंचायत अमेजन पे जो है नहीं देखे थे? हाँ देखिए, तो उसमें बहुत बढ़िया से दिखाया है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो वहाँ महिला जो पंचायत है उन्हें कहती है कई बार, कह रहे हम हैं सरपंच की आप हैं सरपंच, पति ज़्यादा चढ़ता रहता है तो कहती है कि देखिए आप हिसाब में रहिए, सरपंच हम हैं, ठीक है ना, कानूनी रूप से भी हम हैं, इसलिए आपका इसमें अपना रहिए। कई बार उनको फिर डीएम उनका क्लास ले लेते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं पंचायत भवन में, सरपंच ये हैं कि आप हैं, तो आप किस लिए यहाँ पर हैं, आपका यहाँ क्या काम है, ठीक है। तो बेचारे अपना खिसक लेते हैं। तो ये होता है, ठीक है, कि कई बार महिलाओं का जो है खाली चेहरा दिखाने के लिए मिसयूज किया जाता है कि हाँ महिला चुनी गई है। सच इंस्टेंसेज हाउएवर आर बिकमिंग फ्यूअर, लेकिन ऐसे मामलों में अब कमी आती जा रही है, जब महिलाएं समझ रही हैं कि भाई उनको चुना जा रहा है तो कोई जिम्मेदारी पर चुना जा रहा है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी फिर सभी लोगों के प्रति हो जाती है, सिर्फ अपने पति के प्रति नहीं। मतलब कि वुमेन पे केवल वुमेन ही खड़ा हो सकती है, हाँ, तो उसका अलग से उसी में सेपरेट इलेक्टोरल रोल का चुनाव होता है, कैसे उसका प्रोसीजर? मान लीजिए कोई उसको वोट नहीं दिया, अगर सबके साथ खड़ा है तो वोट नहीं दिया तो वो इलेक्शन कैंसिल, दोबारा इलेक्शन होगा। भाई चुनना वहाँ महिला ही को है, वोट नहीं दिए तो क्या फिर दोबारा इलेक्शन होगा? कैसे होता है कि सरकार किसी को मेजॉरिटी नहीं बना? नहीं, वही सिस्टम है, खाली सीट रिजर्व होती है, कैंडिडेट जो होता है महिला ही खड़ी होगी, कोई उसको नहीं वोट दिया तो कोई नहीं, फिर से फ्रेश चुनाव होगा। 10 लोग में मान लीजिए 3 को महिला को करना, लेकिन तीनों का तीनों अगर हार गए तो किसी को वोट नहीं मिला तो जैसे कि नहीं समझे, वोट किसी को तो मिलेगा ना, यहाँ ये थोड़े है ज्यादा वोट किसको मिले, किसी एक ही वोट पड़ेगा तो एक ही वोट जिसको पड़ा वही जीत जाएगी, जीतेगी महिला ही। भाई पुरुष तो खड़ा होगा नहीं वहां, मान लीजिए खड़ा हो जाता है बेवकूफ़ी में, क्योंकि सीट तो रिजर्व है महिला के लिए, वो जीत के भी नहीं जीत पाएगा। आपको नहीं समझ में? मान लीजिए ये बेउर की सीट है, महिला के लिए रिजर्व्ड, तो महिला के लिए रिजर्व है का मतलब यहाँ से महिला चुनी जाएगी, खड़ा होने पे रोक नहीं है। भाई पुरुष खड़े हो जाइए सब, जीतेगी तो महिला ही, अगर पुरुष जीता भी जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नहीं जीता हुआ माना जाएगा। अब आपकी मर्जी है, खड़े होने का शौक है तो खड़े होइए। मान लीजिए कि 2 महिला खड़ा होगा, हाँ, तो जिसको तीनों में ज्यादा पड़ेगा बस वो जीत जाएगी। मेल वैसे ही जीतने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे तो उनका मतलब ही नहीं है, तो जिसको खड़ा होने का शौक है खड़ा हो ही है।
ठीक है। एरिया पर रिजर्व रहता है। सीट जो है, हाँ, वो जो जैसे जो भी वो पंचायत है, तो पंचायत वो रिजर्व हो जाती है। उसी के अंदर में कंपटीशन होता है, मान लीजिए हाँ। 4 गो 5 गो लेडीज। तो जैसे यहाँ देखिए, एक आपको एक ग्राम पंचायत का फोटो दिया हुआ है कि भाई लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सरपंच बैठे हुए हैं, वार्ड सभा के मेंबर बैठे हुए हैं, गांव के लोग, महिलाएं बैठी हुई हैं। कहाँ का फोटो है? अब ये देख सकते हैं, संयुक्त वन संस्थापन भवन, ये महाराष्ट्र का है, कोई जगह का नाम यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार, मतलब दिल्ली मुंबई में तो हमारी सरकार है ही, और हमारे गांव में तो हमारी ही अपनी सरकार है। ठीक है। तो ये मराठी में लिखा हुआ है, और ये जो है 1997, हाँ 97 साल का है, ये साल लिखा हुआ है, लेकिन अब एरिया कहाँ नहीं लिखा हुआ दिख रहा है कहीं। तो ये एक पंचायत का सीन दिख रहा है। ठीक है, कि भाई सरपंच बैठे हुए हैं, ये सब वार्ड सभा के मेंबर हैं, और महिलाएं गांव की सब बैठी हुई है, कोई फैसला किया जा रहा है। ठीक है। तो वाइल, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है एक चीज देखने को यहाँ लिख रहा है, लुक एट दिस फोटोग्राफ, द लोकल सरकार इज सिटिंग आउट इन द सन। कह रहा है कि वहाँ की जो सरकार है, ये सब मिलके सरकार है, ये सब धूप में बैठे हुए हैं। इज देयर एनी अदर फीचर दैट स्ट्राइक्स यू? तो यहाँ क्लियर कट आप देख रहे हैं कि सरपंच एक जगह बैठे हुए हैं, उसके पास में पुरुष लोग सब उसके सट के बैठे हुए हैं, और महिलाओं को अलग बिठा रखा है। ये महिलाएं भी ऐसे ही मेंबर हैं ग्राम सभा की। ठीक है, लेकिन इनको देखिए अलग थलग दूर बिठाया हुआ है, और पुरुष लोग तो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें हमारा ये सब सोच है, जो गांव समाज की सोच है कि महिलाओं को वैल्यू नहीं देना, महिलाओं को अलग थलग करके रखना। ठीक है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं दूर अलग से बैठी हुई हैं। ठीक है। और एक तरफ सरपंच है, बीच में वो कोई उसका असिस्टेंट है, वो काम का जो बात हो रहा है लिख रहा है, और इधर जो है पुरुष लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो अभी भी हम देख सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं में ऐसा नहीं कि एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, वो अलग अलग इस तरह से बैठे हुए हैं। देश आजाद का 50 साल हो गया। हाँ, 1997 का मैंने बताया आपको कि ये चीज़ है। While reservations for scheduled castes and tribes are mandated by the constitutional amendment, most states have also made a provision to reserve seats for backward castes. तो जहां संविधान में जो है एक कहा गया है कि भाई एटलीस्ट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपको रिजर्वेशन होना है, बहुत सारे राज्यों ने बैकवर्ड कास्ट के लिए भी उसमें अलग से रिजर्वेशन जोड़ दिया है पंचायतों ये सब में। As the Indian population has 16.2% शेड्यूल्ड कास्ट, देखिए आपको यहाँ से फिगर मिल गया, जो 2011 का फिगर है पॉपुलेशन सेंसस का। इंडिया में 16% शेड्यूल्ड कास्ट हैं, 8.2% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एंड अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स इन अर्बन एंड लोकल बॉडीज हेल फ्रॉम दीज टू कम्युनिटीज। तो जहां आपने देखा कि 32 लाख टोटल लगभग चुनाव होते हैं, उसमें 6.6 लाख जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। 6.5 लाख लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, चाहे शहरों में या गांव में, वो इन कैटेगरीज से हैं। दिस हैज सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द सोशल प्रोफाइल ऑफ लोकल बॉडीज। तो इससे जो है, जो अपना लोकल गवर्नमेंट का जो प्रोफाइल है, मतलब उसका जो रवैया है, जो रूपरेखा है, वो बहुत ज़्यादा बदला है। जहाँ है हेल फ्रॉम, मतलब इससे है, इससे होना। हेल मतलब हाँ, टू बिलोंग। ओके। तो कहने का मतलब है कि जहां पहले कुछ ही जातियों का दबदबा होता था और वो अपना एक डोमिनेंस और दिखाती थी कि हम भाई उच्च वर्ग हैं और ये हैं वो हैं, तो और वो बहुत सारी जातियों को जो है वो अलग थलग करके रखती थी, उनको जो है पिछड़ा तरह से बना के रखती थी, डेवलप नहीं होने देती थी। तो वो उस हालात से बहुत हालात बदले हैं।
जब सबके लिए रिजर्वेशन किया गया और सारी कम्युनिटीज़ के लोग जो है सरकार में आने लगे हैं, इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने लगे हैं, तो उससे जो है हर स्तर पर इन लोकल बॉडीज़ में जो इनका जो है रवैया चेंज हुआ है। अब ये लोग हर जातियों पर ध्यान देते हैं, उनके मामलों पर ध्यान, और आज तो समझिए कि मामला ही उलट गया है। आज तो आप देखिए कि सब क्या है, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, भीमराव 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 अम्बेडकर, ठीक है, किसको अगरबत्ती दिखा रहे हैं? इनडायरेक्टली ये लोग पिछड़ी जातियों को अगरबत्ती दिखा रहे हैं। तो हाँ, तो आज की पॉलिटिक्स ही बदल गई है, ठीक है। तो आज जो है इनको ही एक तरह से सेंटर पॉइंट मिला हुआ है राजनीति में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक हमारे डेमोक्रेसी की पहचान है कि हाँ, आज हम अपने जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, हमारे जो पहले से जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिनको नेग्लेक्ट किया गया, आज उन पर ही हमारा राजनीति फोकस्ड है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो सोच थी हमारे नेताओं की कि नहीं, हर वर्ग को बराबर मौका मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई ये जाति वो जाति, ये धर्म वो धर्म, ठीक है। तो ये अच्छी ये है। और महिलाओं के लिए भी जैसे है, हमेशा से सबों ने कोशिश किया कि महिलाओं का भी जो है लोग पुरुष समझें, ठीक है। जिस तरह पुरुष पैदा किए भगवान ने, वैसे ही महिला पैदा की। नहीं, ठीक है, पर हम कह रहे हैं कि जैसे एक जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही एक बच्ची का जन्म होता है। जैसे एक बच्चे को गुण मिलते हैं, वैसे ही एक बच्ची को भी गुण मिलते हैं। एक बच्चा कुछ अच्छे दिमाग का हो सकता है, तो एक बच्ची भी अच्छे दिमाग की हो सकती है। एक बच्चा श्रेष्ठ संस्कार वाला हो सकता है, तो एक बच्ची भी श्रेष्ठ संस्कार वाली हो सकती है। एक बच्चा उच्च योग्यता वाला, हाई मेरिट वाला हो सकता है, तो एक बच्ची भी हाई मेरिट वाली हो सकती है। तो ऐसा कहाँ है? लेकिन ये पुरुषों की गलत सोच थी, और धीरे धीरे वो अपना, हालांकि अभी भी कम हुई है, लेकिन बहुत कम नहीं हुई है, थोड़ा और बदलाव की ज़रूरत है। अभी भी लोग पढ़ लिख के भी जो है ये सब भेदभाव से बच नहीं पाते हैं। अभी देखिए उस महिला ने, मैंने आपको बता रहा था कि फिर अभी उसको 4 बच्चियां हैं, फिर अभी बच्ची से प्रेग्नेंट थी, उसको उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया, ठीक है, कि बच्ची है फिर से। तो क्या करें, कुछ भगवान भी ऐसा करते हैं कि भाई तकलीफ पुरुषों को महिला देते हैं, भगवान भी ऐसा कर देते हैं कि दुख तकलीफ कर देते हैं कि भाई बच्ची पे बच्ची, बच्ची पे बच्ची। अरे भाई, कुछ ईश्वर का भी है, क्या कहें। गलती तो भगवान का, भेदभाव तो ऊपर वाला करता है सबके साथ। These bodies have thus become more representative of the social reality they operate within. तो ये जो है, जो ये संस्थाएं हैं, चाहे पंचायती राज की हैं, चाहे शहरी निकाय बोलते हैं, शहरी निकायों की संस्थाएं जो है, ये जो है अब समाज की सच्चाई को एक दिखा रहे हैं। आज हमारे समाज की जो सच्चाई है वो इनसे झलक में आती है कि हाँ, कितनी महिलाएं चुनी जा रही हैं, तो वो दिखाती हैं कि हाँ, महिलाओं को भी आज स्थान मिल रहा है, या कितनी हर जातियों के लोग चुने जा रहे हैं, सभी जातियों से। मैं किसी को डेवलप्ड या बैकवर्ड नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने समाजशास्त्र का भी अध्ययन किया है, तो मेरी सोच बड़ी ही अलग है। मैं तो कहता हूँ जिनको आप बैकवर्ड कहते हैं, एक्चुअली वही डेवलप्ड है, और जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम डेवलप्ड हैं, एक्चुअली वही बैकवर्ड है। तो हमारी तो सोच एक अलग स्तर की है। हम तो सबसे मानते हैं, श्रेष्ठ हैं जो आदिवासी भाई हैं हमारे, उनको मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, अपने जिसको जितना ज्ञान है उसमें वो जो समझता है, तो ये कहने का मतलब है कि सभी जातियों को, ठीक है ना, जिस तरह से हमारा समाज आज उनको चुन रहा है, उनका भी हर जगह बात सुनी जा रही है, वो चुने जा रहे हैं पदों पर, तो उससे एक हमारे समाज की बदलती हुई परिस्थिति दिखाई देती है। द चेंजिंग स्टेटस ऑफ आवर सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड बाय दीज बॉडीज। समटाइम्स दिस लीड्स टू टेंशंस। भाई मैं तो कहता हूं कि भाई आपको या किसी को या मुझे तो किसी को भी और ऊपर बढ़ा के दिखाना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरा आदिवासी भाई है, ये मेरा ये भाई है, ये जाति का भाई है, ये लोग हैं। आप पता नहीं किसी को नीचा क्यों दिखाने में लगता है, क्योंकि उसमें अपनापन नहीं होता है, उसकी सोच ही नहीं है, उसकी सोच उतना, वो समझिए कि वो इतना बैकवर्ड है कि उसकी सोच अपने से बाहर है ही नहीं।
उसको दुनिया खाली अपने में दिखाई देती है, उसके बाहर उसको कोई आदमी दिखाई नहीं देता है कि भाई मैं आदमी हूं मेरी तरह, और भी अगल बगल सब आदमी ही हैं। वो सिर्फ अपने में डूबा हुआ है कि मैं अपने आप को कैसे दिखा दूं मैं बाकियों से बहुत श्रेष्ठ हूं। क्या श्रेष्ठ हो? तुम भी नंगे पैदा हुए थे, वो भी नंगा पैदा हुआ था। तुम भी नंगे जलाए जाओगे, वो भी नंगा ही जलाया जाएगा। ठीक है ना? न कुछ तुम लेके आए थे न वो लेके आया, न तुम कुछ लेके जाओगे न वो लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन यही कहते हैं कि अब ये ईश्वर का है कि किसी को समझ मिल जाती है, समझ जाता है कि अरे भाई हम सब जीव हैं, हम तो एक मच्छर जीव को भी मानते हैं कि वो भी जैसे हम हैं वैसे वो जीव है, रूप अलग अलग है खाली। हम मानव होकर बड़ा सोचते हैं श्रेष्ठ है, हर जीव वैसे ही है। ठीक है, तो क्या कहें, हिंदू धर्म में इतना ज्ञान है लेकिन हिंदू ही सबसे बेवकूफ है। धर्म में हमारे इतना ज्ञान है लेकिन लोग हमारे उतने ही बेवकूफ हैं। बीजेपी और बेवकूफ बना रहा है। तो ये सब सोच कि भाई अरे भाई छोटा बड़ा कोशिश करते हैं समझाएं लोगों को। तो समटाइम्स दिस लीड्स टू टेंशंस, और इससे क्या है कई बार तनाव हो जाता है आपस में। द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स विच कंट्रोल्ड द विलेज अर्लियर डू नॉट विश टू गिव अप देयर पावर। तो लोग जो है, जो पहले जो दबदबा बनाए हुए थे गांव के समाज में, वो अपना दबदबा को खोना नहीं चाहते हैं। मैं अपने एक मित्र में देखा ये बात। मैं बोला आपसे कि मैं 25 साल बाद अपने एक मित्र से मिलने गया था। वो मित्र मेरा इतना गुस्सैल स्वभाव का था, इतना एग्रेसिव था, उससे ज़्यादा मैंने एग्रेसिव जीवन में किसी को नहीं देखा जितना लोग को मैंने देखा। मतलब कोई चीज़ पर तुरंत रिएक्ट कर जाना, लड़ जाना, झगड़ जाना सामने वाले से। और उसको जब दुनिया ने पाठ सिखलाया ठीक है ना, तो जीवन तो सबको पाठ सिखा देती है। ठीक है, तो वो सोचिए कि वैसे वो लोग ठाकुर कहे जाते हैं, यूपी में राजपूत हैं ऐसे ठाकुर कहे जाते हैं। वो कहता है कि मुझे किसी का भी आज पैर छूने में हिचकिचाहट नहीं होती है, वो किसी भी जाति का हो, और मैं बिल्कुल पूरे सम्मान से उसके पैर छूता हूँ। तो मुझे ये बहुत बड़ा बदलाव लगा कि चलिए इतना तो इसको समझ में आई बात। ठीक है, तो सबको जीवन सिखा देता है, समय और दुनिया सिखा देती है, लेकिन बेवकूफ़ी में जब तक दिमाग पर पर्दा चढ़ा रहता है, लोग सोचता है हाँ मेरा दबदबा है, मेरा बात चल रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी में खुश रहते हैं। तो द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स विच कंट्रोल्ड द विलेज अर्लियर डू नॉट विश टू गिव अप देयर पावर। होता है भगवान बुद्धि हर लेते हैं, समझ गए ना। कहते हैं कि क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब आदमी का विनाश की तरफ बढ़ता है आदमी, तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, वो और अपने विनाश की तरफ बढ़ता जाता है मन लगा के, और विनाश के निकट पहुंचता जाता है। ये भी जिंदगी का अजीब है कि जब हम अपने गड़बड़ी कर रहे होते हैं तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, करो बढ़िया से। अच्छा काम करिएगा तो 10 लोग आपको लंगड़ी लगाएगा, सोच टोकेगा, करेगा, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। गलत रास्ते पर बढ़िए तो कोई बोलने वाला नहीं होता है, और सब छोड़ देगा कि अच्छा बढ़ो ना, मजा लो, अपने पाओगे मजा। तो वैसे ही यहाँ है कि ऐसे कुछ जो है भ्रमित लोग जो सोचते हैं कि हमारा दबदबा चल रहा है, तो वो अपना उस भ्रम से निकलना नहीं चाहते हैं। दिस लीड्स टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर। तो इससे जो है शक्ति, सत्ता के लिए जो संघर्ष है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अपना पद, अपना प्रभाव को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जो बढ़ रहा है आगे की ओर समाज, वो अपना चाहता है कि हमको भाई, हमको अपना जो असली मेरा है अधिकार वो मिलना चाहिए। बट टेंशन एंड स्ट्रगल इज नॉट ऑलवेज बैड। लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते हैं, सही बात है, क्योंकि इन्हीं से कुछ अच्छा नतीजा निकलता है। अच्छा नतीजा कभी कभी बहुत तनाव, जैसे मैंने कल कहा कि मैंने कल को एक सोचा कि भाई कहीं कुछ कर दूं,
जो एसी कोई बोले हम क्या लगवा देते हैं। भगवान हमारा परीक्षा ले लिए, 6 घंटा इंतजार, ठीक है, बता रहे रात 12 बजे काम खत्म हुआ, मैं आया हूँ, ठीक है, तो हम कहे भगवान आप भी परीक्षा ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये संघर्ष और तनाव होता है, लेकिन इससे अच्छा ही निकल के आता है। इसलिए whenever there is an attempt to make democracy more meaningful and give power to those who did not enjoy it earlier, there is bound to be some conflict and tension in society। तो जब भी कोई ऐसा प्रयास होता है कि जो हमारा व्यवस्था है, लोकतंत्र है, उसको और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाया जाए और ऐसे लोगों को भी सत्ता या जिम्मेदारी दी जाए जो पहले जिनको नहीं मिलती थी, तो हमेशा समाज में तनाव और संघर्ष होता ही है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स असाइंड एज मेनी एज 29 सब्जेक्ट्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स। तो जो संविधान में संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, तो दे असाइंड 29 सब्जेक्ट्स टू लोकल गवर्नमेंट्स। उन्होंने 29 विषय, जैसा आपको मैंने पहले बताया, वो दिए गए इन सरकारों को। लोग हाँ, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू फंक्शंस लिंक्ड टू लोकल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट नीड्स। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो लोकल लेवल पर उनके वेलफेयर, उनके डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, कि जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फेस्टिवल्स, फेयर्स, ठीक है, इस तरह के जो भी वेटरनरी, ठीक है, दवाएं, बिजली गांव के स्तर की, तो जो लोकल ज़रूरतें होती हैं उनके फ़ायदे के लिए, उनके हित के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए विकास के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे इनको दिए गए। द एक्सपीरियंस with the functioning of local government in the past decade has shown that local governments in India enjoy limited autonomy to perform the functions assigned to them। तो जितना अभी तक का हमारा तजुर्बा, क्योंकि अभी हम बहुत कम हुए हैं, क्योंकि आपको पता है 93 में ये अमेंडमेंट्स आए ही, 93 से लागू हुए, तो 93 से आज 20-22 साल हार्डली हुए हैं, नहीं माने 30 साल लगभग हो गए। तो 30 सालों में हमारा बहुत लिमिटेड अभी रहा है तजुर्बा, लेकिन हाँ अभी तक रहा है कि हमारे यहाँ जो है अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर नहीं अभी भी मिला है वास्तविकता में। अभी भी पावर जो है कलेक्टर्स, ऑफिसर्स, इन सब के हाथ में बहुत रहता है। Many states have not transferred most of the subjects to the local bodies। कई राज्यों ने तो अभी तक सारे सब्जेक्ट्स ट्रांसफर भी नहीं किए हैं, खाली कागज पर है वो। This means that the local bodies cannot really function in an effective manner। तो जहां उसको अभी पावर ही आपने नहीं दिया तो वो काम कहां से करेंगे? अभी भी स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर लिए हुए सब। Therefore, the entire exercise of electing so many representatives becomes somewhat symbolic। तो ये पूरा जो इतना पूरा जो है प्रयास है, इतना जो पूरा मेहनत है कि इतने सारे हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने ताकि वो देश के लोगों के लिए काम करें, ये सब व्यर्थ हो जाता है। सम पीपल क्रिटिसाइज द फॉर, देखिए कई बार है भय क्या कि बहुत सी राज्य सरकारें ये भी सोचती हैं अरे ये लोग क्या करेंगे, इनको कोई तजुर्बा ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको पैसा दे देंगे सब पैसा गुड़ गोबर कर देंगे। ये भी बात तो ये भी सोच है क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। चुन तो लिया लोगों ने गांव पर या जहाँ, लेकिन उनको व्यवस्था चलाने का कोई आइडिया नहीं है, कहाँ कैसे क्या करना है कानूनों की जानकारी नहीं है, संविधान की क्या सोच है वो जानकारी नहीं है। ठीक है, वो अपने जातिवाद से प्रेरित होते हैं, कहीं ना कहीं गांव के स्तर पर जो तरह तरह के भेदभाव होते हैं उनसे भरे हुए रहते हैं। तो इस सब कारण से भी बहुत सी राज्य सरकारें उनको बहुत अभी पावर एक साथ नहीं देना चाह रही है कि ज़्यादा इनको दे दिया तो भाई वैसे ही पैसे फंड्स कम है वो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ का कुछ करा देंगे, क्वालिटी समझते नहीं हैं। तो ये सब कारणों से भी बहुत सारी सरकारों ने अभी इनको बहुत ज़्यादा पावर्स ट्रांसफ़र नहीं किया है। सो देखिए सम पीपल क्रिटिसाइज द फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज बिकॉज दिस हैज़ नॉट द चेंज द वे इन विच डिसीजंस आर टेकन एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। हाँ, कई लोग ये भी आलोचना करते हैं कि कोई विशेष फायदा इनसे नहीं हुआ इनको बना के,
क्योंकि अभी भी फैसले पहले की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती हैं या स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, ऐसा ही बहुत लोग कहते हैं। पीपल एट द लोकल लेवल डू नॉट इंजॉय मच पावर्स ऑफ चूजिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्थानीय स्तर पर जो है लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं मिला है कि वो इन योजनाओं को चलाएं या संसाधनों को का कंट्रोल हो। लेकिन ये भी मैंने देखा है कि जितना ज़्यादा पावर्स मिल जाता है फिर उतना ही करप्शन ये लोग करना शुरू कर देते हैं। हर जगह घोटाला। अभी मैं कल परसों ही देखा, मैं आपको दिखाना चाह रहा था लेकिन मैंने फ़ोन नहीं किया कि पता नहीं आप उस समय देख पाएंगे कि नहीं। दिन में ही दोपहर वगैरह में आ रहा था। जैसे मैं एक अरुणाचल का चैनल देख रहा था तो वहाँ पर वो शिकायत कर रहे थे लोग कि देखिए ना, स्कूल बनाए हैं सरकार ने, सारा राशन ये सब जो है टीचर लोग ही खा लेते हैं, बांट लेते हैं, बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह की, क्योंकि जहां आप सरकार फैल रहा है उतना करप्शन भी फैल रहा है। पंचायतें इतनी बना दी गई, सरपंच इतने, अब सब जगह है कि भाई जो भी आता है पैसा, मुखिया का चुनाव इसलिए लोग लड़ना चाहते हैं कि भाई पैसा खाने को मिलेगा। हालांकि अब बहुत ज़्यादा टाइट सरकार ने कर दिया, बीजेपी सरकार ने हर चीज़ को आधार से जोड़ दिया, हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी अभी भी करप्शन है। तो करप्शन भी उतना ही बढ़ जाता है। देखिए बिहार में टीचरों को अपॉइंट कर देते हैं तो टीचर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, हेडमास्टर ये सब बन जाते हैं तो फिर वो पैसा खाना शुरू कर देते हैं। तो करप्शन भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। वो भी सही बात है कि एक देखने की बात होती है। लोकल बॉडीज हैव वेरी लिटिल फंड्स ऑफ देयर ओन। कहा जा रहा है कि लोकल जो बॉडीज होती हैं उनको बहुत ही लिमिटेड फंड होता है अपना। द डिपेंडेंस ऑफ लोकल बॉडीज ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट हैज ग्रेटली इरोडेड देयर कैपेसिटी टू ऑपरेट एफिशिएंटली। तो ये जो संस्थाएं हैं, चाहे पंचायती राज की हों चाहे शहरी निकाय हों, है ना, वेदर दे आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी, they are dependent on the central or state governments for their funds and that is why it has restricted them from functioning properly। भाई पैसा ही नहीं रहता है तो कुछ काम करा नहीं पाते हैं। भाई पैसा अब जब देगा तभी वो कराएगा, अब कब देगा वो वही जाने, तो ये क्या प्लानिंग करेगा, क्या इंप्लीमेंट करेगा। तो ऐसा भी है, ये भी एक बात है कि बहुत बार इनका कामकाज इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनका पैसे के लिए डिपेंडेंट है। इरोड मीन्स रिड्यूस, डिक्रीज। इरोजन पढ़े थे ना ज्योग्राफी में जी, इरोड से, उसी से इरोजन से बना है इरोड। रिड्यूस, डिक्रीज। जैसे वहाँ कटाव को इरोजन कहते हैं, कट जाता है, मिट्टी बह जाती है, तो वही है टू रिड्यूस। इसका मतलब क्या, रिड्यूस। While rural local bodies raise 0.24% of total revenues collected, they account for 4% of total expenditure made by government। तो रूरल बॉडीज का, पंचायती राज संस्थाओं का कहा जा रहा है कि जो वो रेवेन्यू टोटल कलेक्ट होता है सरकार का, उसका मात्र 0.24% उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जबकि खर्च उनको कितना करना पड़ता है, दे अकाउंट फॉर 4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। जबकि सरकार का जो खर्च होता है उसका टोटल का 4% इन पर खर्च होता है। देखिए फर्क कितना है, जनरेट वो 0.24% ही कर रही हैं, यानी 1% का भी चौथाई, और खर्च कितना करना पड़ रहा है वहां पर 4%। किसका मतलब है कि वो, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का ही पैसा सारा आ रहा है, उनके पास पैसा है नहीं। तो यही कह रहा है कि सो दे अर्न मच लेस देन दे स्पेंड। यहाँ खर्च बहुत ज़्यादा होता है, आमदनी बहुत कम है। दैट मेक्स देम डिपेंडेंट ऑन दोज हु गिव देम ग्रांट्स। तो इसके लिए उनको, जो उनको ग्रांट देते हैं उन्हीं पर डिपेंडेंट होना पड़ जाता है। और यहीं पर पार्टी पॉलिटिक्स फिर आ जाती है कि भाई जो पार्टी की सरकार है वो फंड देगी तो उनको भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो ये जो था, इस तरह से हमने लोकल गवर्नमेंट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए। हमने समझा लोकल गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट क्या है, कैसे उसको लाया गया देश में, आज़ादी के बाद कैसे लागू हुआ,
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह करवाए गए। बाद में चूँकि हर राज्य में अलग अलग इनका बहुत था, तो आपस में बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, इनका मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा था और डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था रूरल एरियाज़ का, अर्बन एरियाज़ का। इसके लिए फिर जो है अमेंडमेंट्स लाए गए, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिसके तहत 11th और 12th शेड्यूल में पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए प्रोविज़न किया गया, उनको पावर्स दिए गए, उनके इलेक्शन के लिए किए गए, उनको सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र किए गए, उनके फंड्स दिए गए। लेकिन उनके वर्किंग में अभी भी काफ़ी कमी है, इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि वास्तव में ग्राउंड लेवल पर यही काम करते हैं। तो इसलिए इनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है, तभी देश का विकास हो सकता है। जैसा हमारी करंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने तय किया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो अगर इस टारगेट को वो चाहते हैं तो उसके लिए हमें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ शिक्षा का सुधार भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ग्रामीण स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर जो है वो एजुकेशन अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेगी लोगों में, उनको समझ में नहीं आएगा, तब तक जो है ये संस्थाएं ठीक से, क्योंकि यही लोग फिर आगे चल के इन गाँव की संस्थाओं में काम करते हैं। तो जब उनको शिक्षा ही नहीं होगी तो वो क्या समझेंगे, क्या काम करेंगे ढंग से। इसलिए हमें शिक्षा में सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ हाँ कंक्लूजन आपका दिया हुआ है कि दिस एक्सपीरियंस सजेस्ट्स दैट लोकल गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी एजेंसीज इम्प्लीमेंटिंग द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कहा जा रहा है कि ये हमें अनुभव बताता है कि जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करने वाली संस्थाएं यही हैं। जो भी केंद्र सरकार की योजना आती है, राज्य सरकार की योजना आती है, तो चाहे गांव में हो या शहर में हो, कौन लागू करता है? इन्हीं के माध्यम से लागू होता है, इन्हीं के कोऑर्डिनेशन से लागू होता है। गिविंग मोर पावर टू लोकल गवर्नमेंट मीन्स दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इनको ज़्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हमको तैयार होना होगा मेंटली कि अब हम डिसेंट्रलाइजेशन करने जा रहे हैं। पावर जो है वो लोकल लेवल पर भी होगा, सबको पावर मिलेगा हर स्तर पर। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी मीन्स दैट पावर शुड बी शेयर्ड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि सरकार में, सत्ता में सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, people in the villages and urban localities must have the power to decide what policies and programs they want to adopt। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको ये पावर होनी चाहिए ये तय करने की कि उनको किस तरह की नीति चाहिए, किस तरह के कार्यक्रम चाहिए, वहाँ क्या विकास किए जाए, ये तय करने का उन्हीं को अधिकार होना चाहिए। As you have studied earlier, democracy means decentralization of power and giving more and more power to the people। डेमोक्रेसी का मतलब ही है डेमोस क्रेटोस, रूल ऑफ द पीपल। तो रूल ऑफ द पीपल मीन्स गिविंग मोर पावर टू द पीपल, शेयरिंग पावर विद द पीपल, गिविंग देम मोर representation in the government। The laws about local governments are an important step in the direction of democratization। तो जो हमने लोकल गवर्नमेंट्स के जुड़ा हुआ कानून बनाया है वो इसी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। हम चाह रहे हैं कि हमारे देश में और लोकतंत्र ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सबको सरकार में भागीदारी का मौका मिले, सबकी बात सुनी जाए। बट द ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली इन द लीगल प्रोविजंस बट इन द प्रैक्टिस ऑफ दीज प्रोविजंस। लेकिन डेमोक्रेसी का असली पहचान क्या है कि वो कानून बनाने में, शब्दों में नहीं, बल्कि वो लागू कैसे हो रहा है, लोगों का किस तरह से उस पर कार्यान्वयन हो रहा है, लोग किस तरह अमल में ला रहे हैं उन चीज़ों को, ये उसकी असल पहचान है। तो इसके साथ हमारा लोकल गवर्नमेंट्स का जो है डिस्कशन ख़त्म हो गया। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको पढ़ के आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। कहिएगा तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर कंप्लीट करवा दें, ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन का डिस्कशन होगा ही।